All right. So, in previous Git sessions, what we have done is we have explored uh, graphical user interface of GitHub, like how we can do some day-to-day activity using GitHub user interface itself, right? So that were the motive, like to make you guys familiar about that user interface, basic terminologies, right? But in today's session, I'll be covering most of the things that you may encounter while using CLI on your local machine, right? I mean, Git-based CLI commands. So uh, let's start with Git CLI on local machine, right? What I'll do, I will create a directory, the new directory. That's not a Git directory. We'll make it a Git directory, right? And then we'll uh, push it to our existing repository, right? Or we can create a new repository and push it. Uh, so in that, we'll be learning how to link your local directory with the remote repositories, right? So many things we'll cover today, but those are the things that we need to be bit uh, careful. If you don't understand, ask me again, right? So I'm going to make a directory, make it a year, like a git practice. Uh, I think it's a nice name to practice git. So git practice, and then we'll move to git uh, practice, right? So in my root directory here, devnet, I have created git practice. So we should be able to find git practice here, right? So we don't have anything into there, right? If I put ls, we don't have, right? स्क्रीन से So वो स्क्रीन पे uh, सर नहीं है आई थिंक। sorry, स्क्रीन पे दिख नहीं रही सर। स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। नहीं दिख रहा है बोल रहा कुछ हाँ बड़ा दिख रहा है मुझे दिख रहा है। है स्क्रीन पे। अजय सर दिख रहा देख, है। एक ठीक है बार जैसे सर कुछ दिख रहा है मैं फिर से ज्वाइन ऊपर करता हूँ सर। हाँ डिस्कनेक्ट फिर करके से पूछ। ज्वाइन हाँ कीजिए, प्लीज। आपका वेट कर रहा हूँ। ओके सर। तो राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है अभी। व्हेन यू यूज अ git status, so it says fatal, not a git repository or any of the current directories dot git. So question is how सर देखिए। git identifies whether this directory is a git uh, initiated directory or not, क्योंकि ये फोल्डर है सिंपल, तो ये git initialize हुआ है या नहीं हुआ है. So if you see ls, even ls hyphen al to list out all hidden directory as well. So it's not having anything in fact. So when we initialize with the git, this directory is created actually into this the root directory. तो चलिए हम git initialize करते हैं like a git init. देखो आप, आई मीन ये git practice एकदम न्यू हमने फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाया, जिसको जिसमें गिट एनेबल्ड नहीं था. आई मीन इट कैन नॉट ट्रैक एनीथिंग. जैसे आप कोई फाइल ऐड करेंगे तो डेफिनेटली गिट है ही नहीं, तो ट्रैक क्या करेगा इसे, राइट? तो टू मेक इट गिट डायरेक्टरी, गिट एनेबल्ड डायरेक्टरी, we have to initialize this directory with this command git init, right? So now we have initialized this directory git practice, right? So now again use the same this command. See, dot git has been created, and once you go to dot git directory and then you try to find out those all folder directory that gets created automatically. आप देखिए बहुत सारे चीजें क्रिएट हो गई हैं. एक हेड क्रिएट हुआ डायरेक्टरी, ये भी डायरेक्टरी है.
जबकि ये ब्रांचेस है यहाँ पे, डायरेक्टरी नहीं है ये, मुझे लग रहा फाइल है ना, हेड। बट लेट मी चेक इट, हेड नॉट अ डायरेक्टरी, राइट? So let me open what is there actually in head. Uh, okay. So if you see here, in head, head is the file. It's not a directory. In that, it's storing something kind of reference, right? So it's referencing to the main branch, right? So let me exit. Actually, this is a nano editor. So in Visual Studio Code, there is an option to set your default editor. Like when from command line, if you open any file, which editor will be picked. So in your case, somehow you may have seen like आप देखे होंगे कि उसमें वी आई एडिटर खुल जाता है जब आप कमिट में -m मैसेज नहीं देते हैं तो। याद आ रहा? वी आई एडिटर जो फिर हम एस्केप प्रेस करके फिर कॉलन दे के क्विट करते हैं ना, जी जी सर, याद पिछली है? बार हुआ था ये। हाँ सर, हाँ, तो याद आप लोग का ना वो विजुअल स्टूडियो कोड में सेटिंग्स में है, मुझे भी ये देख रहे हो, चैट जीपीटी से करके मार के फटाफट यहाँ जाके आप वो कर सकते हैं कि नैनो एडिटर चाहिए या वीआई एडिटर चाहिए। तो मेरे वाले में नैनो है, इसलिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं इतना बढ़िया से। तो लेकिन हेड में, हेड हम क्या किस चीज को पॉइंट रेफरेंस कर रहा, पॉइंट आउट कर रहा, मेन ब्रांच को। तो अगर फिर देखिए कंट्रोल एक्स मार रहा हूँ एग्जिट के लिए, यहाँ पे कंट्रोल एक्स। तो अगर आप देखेंगे गिट स्टेटस, सर मैंने खाली एक कमांड चलाया है अभी, है ना? विच वन? git init, right? And it has created a, this bunch of files and directories. Git status, so it's saying, okay, this is not a directory. So here, git status, you can say your branch is main, right? And you don't have committed anything. So we are on branch main, and the head, which is just a pointer actually. It's a pointer, sir, which keeps track of the uh, latest branch, the branch you are working, the the latest activities you are doing, right? It points to that activity, that branch, right? So I will show you uh, that in a while. थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग। तो हमने, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, खास करके फर्स्ट टाइम कमांड देखते हैं आप लोग। तो हमने गिट इनिट किया एक अपने डायरेक्टरी को गिट डायरेक्टरी बनाने के लिए, है ना? तो ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, राइट? हाउ यू कैन मेक योर नॉर्मल डायरेक्टरी एज ए गिट डायरेक्टरी। सो दिस इज द कमांड टू मेक योर, टू इनिशियलाइज योर normal directory as a git directory. When you do that, it can interviewer can ask what are those files and folders created. Although I won't be asking this kind of questions, but I'm not sure like people will be asking only like me, right? They can ask anything, so we should be bit prepared for this. Anyway, सर sir, सर, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब जो ये बना रहे हैं इसका क्या रीजन है? क्या हमको इससे निकाल के लाना है? ये वाली, ये गिट इनिट और ये सब जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब हाँ, इसका रीजन क्या है? इससे क्या हम आउटपुट निकालेंगे इन सब चीजों हम को करके? देखिए, तो नॉर्मल जो डायरेक्टरी होती है, देखिए कभी भी हम किसी भी फोल्डर में नया फाइल क्रिएट करते हैं, क्या उसका वर्जन कंट्रोल होता है, मैनेज होता है? नहीं होता ना कुछ भी नहीं वैसा। नहीं। जैसे रिज्यूमे बनाते हैं हम एक डायरेक्टरी में, तो रिज्यूमे में चेंजेस करते हैं, क्या वो नॉर्मल डायरेक्टरी में हो पाता है ट्रैक? हम्म, नहीं नहीं। नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए वो ट्रैक करना, तो कि जो भी आप एक फाइल पे काम कर रहे हो वो सब ट्रैक हो। तो क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डू दैट? मैनुअली हमें सेव करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट वर्जन डिफरेंट देख। डिफरेंट फाइल्स बनाना पड़ेगा, नहीं, नेम चेंज करना पड़ेगा इनफैक्ट। जी इसमें क्या है कि इस वाले में अगर ये गिट इनिशियलाइज्ड हो गया, इसमें कोई फाइल है, रिज्यूमे ही आपका है, उसका नाम आपको बार बार अलग अलग नहीं चेंज करना पड़ेगा, सेम नेम फाइल में कोई भी चेंजेस करेंगे और कमिट क्रिएट करते रहेंगे, कमिट करते रहेंगे, कमिट करते रहेंगे। कमिट मीन्स व्हाट? एक से डिमार्केशन लाइन दे रहे हैं कि हाँ यहाँ तक मैंने सेव कर दिया, यहाँ से यहाँ फिर कुछ चेंजेस करके फिर कमिट कर रहा है, तो फिर आपने वहां पे एक डिमार्केशन लाइन दे दिया कि हाँ यहाँ पे मैंने एक नया वर्जन बना दिया इसी फाइल का, है ना? और आप किसी भी उस वर्जन में कभी भी जा सकते हैं आप। इज दैट मेक सेंस सुनील सर? यस सर।
है ठीक। ना। तो ये अब आप लोग, ऐसा नहीं है कि गेट जो है ना आप खाली इसी के लिए, आप अपने काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में एक्सेल शीट ही है, एक्सेल शीट में डेटा चेंजेस करना है। जानते हैं कभी कभी डेटा हम एक्सेल शीट में फिल कर देते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार ये वाला लेआउट नहीं, पहला वाला ही अच्छा था। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? हाँ जी। तो क्यों नहीं लोकली आप खाली एक गिट इंस्टॉल कर लोगे तो हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि गिटहब पे ही पुश करना है या कहीं पे भी, लोकली आपको उसको सारे वर्जन मेंटेन करने के लिए गिट इनिशियलाइज कर लो अपने डायरेक्टरी को, उसी में जो है ना आप एक्सेल शीट आप एडिट करो उस डायरेक्टरी में, बार बार कमिट करते रहो ताकि हर कमिट रहेगा आपके पास, ताकि कभी भी कहीं भी रिवर्ट कर सकते हैं सर। कितनी इजी लाइफ हो जाएगी सर, है ना। हम्म, सो टेक्नोलॉजी, एनी टेक्नोलॉजी कम्स फॉर कम्स टू मेक योर लाइफ इजी, है ना। तो यही चीज देखना हमें कि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं डेफिनेटली वो हमारे को हेल्प करता तभी पढ़ते हैं, राइट। हम्म, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन है कि हमारे एज ए नेटवर्क इंजीनियर क्या रेलेवेंट है, तो बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरफेस चेंज हो रहा है। पहले CLI से GUI आए, GUI से अब क्या है, हम API बेस्ड आए हैं, एक्सेस, है ना जी। जितने भी यस। वेबसाइट बन रही हैं, जितने भी वेबसाइट, जैसा आप नेटजी इंडिया का वेबसाइट देखेंगे तो ये लेगेसी वेबसाइट हो गया है अब। ये लेगेसी वेबसाइट हो गया। क्यों, क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये जो मान लीजिए, कोई भी एक ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये वाला है, ये। अब ये तो मैं URL पता है तो मैं वेब ब्राउजर में डाल के मैं इसे एक्सेस करके ऐसा देख सकता हूँ वेब ब्राउजर में। लेकिन मुझे इस डेटा को कोड में यूज करना है, मान लीजिए पाइथन कोड लिख रहे हैं उसमें ये डेटा चाहिए। तो क्वेश्चन है कि ये आपका कोड कैसा पुल करेगा इस डेटा को, राइट। तो ये जो URL है, इसी का अब इन्हांसमेंट आया कि इस URL के बदले एक API एंड पॉइंट दिया था, मीन्स कि वो भी URL ही है, लेकिन वो उसके, अगर वो URL कोई कोड से आप एक्सेस कर रहे हैं, जैसा पाइथन कोड लिख रहे हैं और वहां पे वो URL यूज कर रहे हैं ये डेटा एक्सेस करने के लिए, तो वो इंटरनली जाके एक स्क्रिप्ट रन करेगा और वहां से वो आपको HTTP एक्सेस करेगा इस वेबसाइट को, सर्वर को। विजुअल इंटरफेस नहीं चाहिए ना उसको, ये थोड़ी चाहिए ऐसा देखना मेरे कोड को। तो वो API कॉल करेगा और फाइनली इसे पुल करके कोड में यूज कर लेगा, डिसीजन ले लेगा, है ना। तो मेरा वेबसाइट जो है ये API एनेबल्ड नहीं है, इसके API एंड पॉइंट्स नहीं है, कोई भी डेटा कोई भी पेज इसका API नहीं है। तो अब जो न्यू वेबसाइट बन रही है, चाहे किसी भी कंपनी का कोई भी नया वेबसाइट जो बन रही है, तो इस वेबसाइट को लेगेसी बोला जा रहा है अब, कि अब लेगेसी वे है। ठीक है। अब जो बन रही है नॉर्मल वेबसाइट को भी API इनपुट दिया जा रहा है ताकि कभी भी कोई भी उसे यूज कर ले। जैसा गूगल मैप है ना। गूगल मैप है, तो गूगल मैप आप जो है यहाँ से भी आप देख सकते हैं, है ना, गूगल मैप। ठीक है। तो ये ग्राफिकल वे है गूगल मैप देखने के लिए यहाँ पे, कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन यही डेटा आपको कहाँ चाहिए होता है? मान लीजिए कैब बुकिंग कर रहे हैं आप, कैब हम्म, जब बुक करते हैं तो आपका जो, क्या नाम है, ओला उबर जो भी हैं, वहां से जब बुक करते वक्त यही मैप यूज होता है ना सर। हाँ जी। ऑल्दो आई थिंक उबर इज, उबर हैज बिल्ड इट्स ओन मैप नाउ। शायद डिसकंटिन्यू कर दिया गूगल को, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कुछ न्यूज पढ़ा था मैं थोड़े दिन पहले। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वहां पे भी आपको चाहिए मैप। अब वो ऐप डिसीजन लेगा कहाँ से कहाँ जाना है। तो क्वेश्चन है कि ये डेटा जो है, ऐसा ग्राफिकली तो वहां पे दिखेगा, आपको सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो इंटरनली कोड एग्जीक्यूट होता, रन होता, फिर कैलकुलेट करता डिस्टेंस और पेयर कैलकुलेट करता, राइट। तो क्वेश्चन है कि यही डेटा कि कहाँ से कितना दूर है, कौन सा रूट पॉसिबल है, वो आपको ऐप को चाहिए। तो आपका ऐप ये पूरा तो आपको दिखाता नहीं है कि वो कैसा कैलकुलेट कर रहा हो, बैकएंड में करता, लेकिन डेटा तो ये यूज कर रहा होगा पक्का, राइट। हम्म, तो वो API कॉल करता है। तो अब ये गूगल मैप का ये URL है, राइट। ऐसी ही एक्सेस करने के लिए इसका API भी डेवलप्ड है, जो API आपके ऐप में यूज होता है। वो API जैसा आप SSH नहीं करते हैं, तो हाँ आप जी। SSH समझो, लेगेसी वे है कि आप हम्म, SSH करके किसी डिवाइस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन पुल कर रहे हैं, जो आपका SSH जो है, वैसी HTTP बेस्ड API क्या है हमारा यहाँ पे, HTTP बेस्ड है। HTTP एक्सेस करता है गेट मेथड और वहां से इंफॉर्मेशन पुल करता है, आपका ऐप में कोड में यूज होता है।
तो वैसे ही है कि जो भी चीजें आती हैं आपके लिए इजनेस के लिए आती हैं, और उसकी एक अपनी अपनी वैल्यूज हैं। तो ऐसे ही फायरवॉल्स हैं। फायरवॉल्स आप जो जा के देखते हैं पॉलिसीज, क्वेश्चन है कि आपको उसी फायरवॉल्स के पॉलिसीज कोड से ऐड करना था, एपीआई कॉल होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए ये कन्वर्ट किए जाते हैं एपीआई में, और फिर वो एपीआई आप कोड में यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं वहां पे आपका डिसीजन ले सकते हैं। इज दैट मेक सेंस फॉर एवरीवन? हाँ सर। ठीक है। तो ऑटोमेशन में हमें जो चाहिए कि हम अपने डिवाइसेस से इंटरेक्ट करना है, उसके लिए कोड लिखना है। तो कोड का वर्जन कंट्रोल कैसे करेंगे? अब मैंने जैसे बताया था कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। आप एक रिपॉजिटरी है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे एक रिपॉजिटरी है, और 10 आदमी इस रिपॉजिटरी पे काम कर रहे हैं, लोकली अपने यहाँ काम करते हैं। लोकली काम करने के लिए क्या करेंगे? इसको क्लोन कर लें, क्लोन करके ले जाके उसमें काम करें, या कोई अपना डायरेक्टरी भी बना लें, नॉर्मल डायरेक्टरी, और उसको गिट में कन्वर्ट कर लें, और फिर सारा काम करें। और जब चीजें लोकल चीजें टेस्ट हो गई, फिर जाके उस वर्क को ऐड कर दें इस रिपॉजिटरी में, है ना? तो लोकली करना, तो अगर प्रोफेशनली बात करेंगे तो हम लोकली सीएलआई से काम करते हैं यहाँ पे, सब करके बाद में जाके लास्ट में पुश करते हैं ना सर। आप लोग तो देखे ही होंगे कि हम क्लास करा लेते हो, सब कोड हो जाता है, लास्ट में जाके पुश करता हूँ, है ना? तो लोकली करने में फ्रीडम है। तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है सर, सुनील सर? यस सर। थैंक ठीक है। तो क्यों पढ़ना चाहिए, क्लियर हो गया? यू। हाँ जी। तो वही बोल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल डे में भी लोग यूज कर सकते हैं गिट। भले लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये पढ़ना पड़ेगा उसको यूज करेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे, जानेंगे, तो ये इसको कहीं भी आप जो है ना इजिली, तो आप समझिए कि मुझे भी रिज्यूमे मेरा इसी से मेंटेन करना चाहिए। मुझे अच्छा एग्जांपल आ गया, मुझे मेरे पहले ब्रेन में नहीं था, आप पूछे तो मेरा एग्जांपल ये आया कि अब तो मैं रिज्यूमे भी अपना इसी से मेंटेन करूंगा, लोकल, है ना सर? तो गिट स्टेटस भी देख रहे हैं कि मेन है, लेकिन कुछ भी डेटा अभी नहीं है ना? लेकिन जो गिट बेस्ड फाइल्स जो क्रिएट होती हैं, आप देख रहे हैं कि एक रिपोजिटरी, ये अगर रिपोजिटरी कहीं पे भी है तो वो गिट बेस्ड होता है। आई मीन गिट एनेबल्ड फोल्डर है, डायरेक्टरी है, ये रिपोजिटरी है। लेकिन जैसे ही ये गिट इनिट हो गया तो इसको आप रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं, राइट? ये रिपोजिटरी हो गया, एक्चुअली लोकल रिपोजिटरी हो गया, राइट? ये वाला क्या है? रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है। तो नेक्स्ट चले आप। तो गिट इनिट, तो ये आपको एक चीज दिखाया मैं कि एक कॉन्सेप्ट है हेड। हेड एक फाइल है यहाँ पे, जो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा, मेन ब्रांच को। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे गिट लॉग, ठीक है, गिट एक्स गिट प्रैक्टिस, बट योर करंट ब्रांच में डज नॉट हैव एनी कमिट्स। अच्छा, कमिट्स ही नहीं है तो लॉग नहीं दिखा रहा, ये बोल रहा है ये। तो हमें कुछ फाइल ऐड करके कमिट्स करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसा करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, राइट? कौन सा? आ, आ, फाइल मेन डॉट टीएक्सटी कुछ है ना, कि मेन का है ये, टीएक्सटी। अब यहाँ पे आ गया एक फाइल, और गिट ऐड, गिट स्टेटस मारेंगे तो आपको दिख जाएगा ये फाइल अभी सॉरी, अनट्रैक्ड है। टच टच क्या कीवर्ड था क्या इसका? टच, हाँ, टच कमांड एक फाइल क्रिएट करने का अच्छा। लिनक्स मशीन पे। टच, जैसे एमकेडी डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए होता है ना, हाँ जी। TUCH होता है फाइल क्रिएट करने के लिए। लिख लीजिएगा नोट्स। सर जो डे टू डे यूज होता है ना, सब मैं कवर कर देता हूँ, है ना? बाकी इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है, कि इंटरव्यू में कल के दिन कुछ पूछा जाए तो आप बता सके। ऐसे भी जानते हैं आज के टाइम पे 2-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसके ज्यादा किसी को आइडिया नहीं होता है कि कोई नेटवर्क इंजीनियर ही आपका इंटरव्यू लेते हैं, और वो भी कोई बड़ा हो ना तिस्मार खान नहीं होते हैं इस सब टॉपिक पे। वो भी डेली जो यूज करते होंगे, अगर रियली प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो भी 4 से 5 चीजें हैं जो रोज यूज करते हैं, उसी में वही याद भी रहता है, बाकी सब याद भी नहीं रहता ना कमांड।
और ऐसे भी चैट जीपीटी आने से वो हम भूल भी गए हैं कि कमांड याद रखना है, नहीं करना, रखना जरूरत ही नहीं है, फॉलो और आप देख सकते हैं, सर्च मार सकते हैं। ठीक है, तो अब वो कोई बड़ा नहीं रह गया कि आपको एक कमांड आपको याद नहीं है तो कोई फेल कर दे। तो हाँ, अगर उस तरह के लोग टीम में हैं तो उस टीम में जाना भी अच्छा नहीं है, उस तरह का माइंडसेट के लोग हैं। तो अ, चलिए गिट करते हैं हम। तो वही बोला, लिनक्स के भी बेसिक कमांड जो है ना, वो सब चीजें आ जाएंगी, जैसा लिस्ट है वहां पे dir होता है विंडोज पे, है ना। तो गिट ऐड करते हैं, गिट ऐड और फाइल मेन डॉट टीएक्सटी गिट कमिट। जब तक कमिट नहीं करेंगे लॉग क्रिएट नहीं होगा, है ना सर। एम एडेड फाइल टू मेन ब्रांच, राइट, एडेड फाइल टू मेन ब्रांच। अब देखिए गिट लॉग, गिट स्टेटस देख लीजिए, मेन ब्रांच पे हम गिट लॉग देख लीजिए। लॉग आपको लेके आता, जो भी कमिट्स हैं सारा इंफॉर्मेशन रखेगा, लॉग करके रखता है गिट लॉग। आप एक चीज देखिए, ये कमिट फर्स्ट कमिट है सर हमारा, राइट, ये फर्स्ट कमिट आईडी है, वर्जन नंबर एक्चुअली, हर फाइल का अलग अलग वर्जन नंबर, ये हैश वैल्यू होता है बहुत लंबा, ताकि आप जिंदगी में कितना भी कमिट करें तो यूनिक आईडी क्रिएट हो। लेकिन एक चीज, ये जो हेड है, हेड में आप देखे थे किसको पॉइंट आउट कर रहा सर, मेन को कर रहा, क्या सर, हाँ सर। मेन को, यही चीजें हम कहाँ देखे थे वहां पे, नैनो, नहीं नहीं उसमें हाँ एक चले, डॉट गेट और हेड, है ना सर, ये था। यहाँ देखिए किसको कर रहा रेफरेंस, मेन को ही कर रहा, राइट। तो चलिए, तो वही चीज है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा। तो ये कहाँ से आ रहा है, वो फाइल से उठ के आ रहा है ना जी। तो गिट एनेबल करने के बाद ये जो डायरेक्टरी क्रिएट होता है, इसका यही मीनिंग है कि आप जो है जो ये क्रिएट होता है ये डायरेक्टरी में, तो जो ट्रैकिंग है, हेड जो पॉइंट है रेफरेंस जो लेटेस्ट पे रहेगा, अभी बता रहा हूँ कैसे जा रहा है लेटेस्ट को, वो सब चीजें इसी फोल्डर में जो फाइल से मैनेज होती हैं, जो आप देखते हैं कि कौन सा कमिट आईडी है, सब कुछ इसी में मैनेज होता है। तो इसीलिए ये डायरेक्टरी चाहिए होता है, अगर ये डायरेक्टरी नहीं है तो क्वेश्चन है कि कैसा ट्राई करेंगे, कौन कौन सा फाइल आपको कमिट करनी है, कौन सा कमिट वर्जन है, कहाँ स्टोर होगा इन्फॉर्मेशन। तो इसी डायरेक्टरी में सारा इन्फॉर्मेशन ऐड होता है सर, जो आप गिट लॉग से, गिट हिस्ट्री से जो भी देखेंगे, जो भी अपना काम किया है, इसी डायरेक्टरी में वो फाइल्स हैं जो स्टोर करती हैं जो डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सी डी आपको दिखाऊं, डॉट गेट एंड एल एस, यहाँ पे देखेंगे चलते हैं हम रेफरेंस पे, सी डी रेफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे हेड्स है, एल एस हाइफन ए एल मारते हैं, ताकि डायरेक्टरी है सर, डी है यहाँ पे ना, डी डायरेक्टरी है हेड्स, सी डी हेड्स की एक और डायरेक्टरी वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए एक मेन देखिए, तो ये डायरेक्टरी भी हेड्स कहाँ पॉइंट आउट कर रहा सर, मेन को, तो यहाँ से भी आपको दिख गया ये मेन को पॉइंट आउट कर रहा। ठीक है, जो यहाँ पे हेड है, तो हेड एक रेफरेंस है, पॉइंटर है। पॉइंटर किसको बोलते हैं, जैसे आपके बिल्डिंग के सामने वो बोर्ड लग रहा था ना, पॉइंटर बोर्ड, कि कौन सा कंपनी कौन सा फ्लोर पे, दैट्स कॉल्ड पॉइंटर, इट पॉइंट्स टू है वेयर इट इज, वेयर इज व्हाट। तो वैसे ही ये हेड क्या है, आपका मेन जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जहां पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है और ये पॉइंट आउट कर रहा है कि मेन हेड जो है मेरा मेन के पास है ना, उसको पॉइंट आउट कर रहा है करेंटली। तो ऐसे ही आप बहुत सारे चीजें, लॉग्स जो मार रहा हूँ गिट लॉग्स, वो इस लॉग से लेके आ रहा है एक्चुअली, डायरेक्टरी से। ठीक है, तो ऐसे ही इसीलिए गिट ये डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट है। ओके, so let's move then. Status, git status, git log, git log में आप देखिए हेडमैन को एक कमिट क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको हेड को देखो कैसा पॉइंट आउट कर रहा। एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ, गेट गेट ब्रांच, हाइफन सी मारेंगे, अब ब्रांच नेम, तो ये ब्रांच क्रिएट करता है, हाइफन सी क्रिएट करना होता है नया ब्रांच लोकली, वहां जाके हम क्रिएट कर रहे थे सर, अमृत सर यही पूछ रहे थे ना आप कैसा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो गेट ब्रांच हाइफन सी, और देता हूं मैं एक ब्रांच नेम, क्या दे सर बताइएगा आप लोग।
ABC, लेट इट बी, राइट सर। तो अगर आप देखेंगे तो गिट ब्रांच -A, तो दो ब्रांच क्रिएट हो गई, लेकिन ये जो स्टेरिक दिखाता ना, एक्चुअली ये हेड है, यही हेड है सर, स्टेरिक जो दिखा रहा, ये यही पॉइंटर है, रेफरेंस है। तो हेड कहाँ पे है? मेन पे, अभी ABC पे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं गिट चेकआउट, जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के लिए जाना होता है, तो करते हैं इसको। मैं ड्रॉ भी करते जाता हूँ थोड़ा सा, एक दो चीजें आपको दिखानी है आज, मस्ती वाली चीज है, बड़ी एंजॉय करना चाहिए आपको, मैं कोशिश करूंगा। अरे सर, पेन टैबलेट नहीं ऐड किया हूँ मैं अभी। प्रैक्टिस कीजिए सर, है ना, प्लीज प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं सर, इसमें बस। इसमें कितने ब्रांचेस बनी हुई हैं उसके लिए भी हम ये कमांड चलाएंगे क्या सर? हाँ, ब्रांच हाइफन है, स्टेटस। गेट ब्रांच हाइफन है ना, उसी के लिए है कि कितने ब्रांचेस बनी हुई हैं, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, और मेरा हेड अभी जो रेफरेंस कर रहा हूँ कहाँ पे है ना, इस ब्रांच को पॉइंट आउट कर रहा। ये वीडियोस को बार बार सुनिएगा, है ना, सेट हो जाएगा एकदम। आप ही को नहीं, ये तो लोग जो काम करते हैं सर, उनके लिए मैंने वर्कशॉप लिया, बहुत मेहनत करना पड़ता है सर लेके आने में, खासकर नेटवर्क, हम सब नेटवर्क इंजीनियर है ना, हमारे ब्रेन में ये सब चीजें कभी आ ही नहीं रहती है जिंदगी में, है ना। तो इसीलिए बार बार सुनते हैं, वो चीजें सेट हो जाती है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीका है सर, रिवीजन, रिवीजन इज द मदर ऑफ लर्निंग, सुने होंगे आप लोग सब लोग, लेकिन ये फैक्ट है, अगर इसको आप रियल टाइम में अप्लाई कर लिया ना, ये बिकम लाइक एनीथिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारा जो है ना, एक ब्रांच था मेन, है ना सर, मेन ब्रांच था, और मेरा हेड है वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा, राइट। अब मैं इस ब्रांच से, मैंने एक ब्रांच बनाया ABC, ठीक है, लेकिन मेरा हेड अभी यहीं पे है, क्योंकि ये ब्रांच खाली बनाया हूँ, इस ब्रांच में मैंने गया नहीं है अभी। आप देखेंगे तो जो मैंने ब्रांच बनाया यहाँ पे गिट ब्रांच ABC बनाया हूँ, सिर्फ बनाया हूँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ? मेन पे ही हूँ सर मैं, है ना जी। गिट स्टेटस मारिएगा तो आपको दिखा देगा आप कहाँ पे हैं, स्टेटस। अभी कहाँ हैं हम? मेन पे ही हैं सर, हम अभी ABC पे स्विच नहीं किए हैं हमने, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्विच गिट चेकआउट, गिट चेकआउट ABC, राइट। तो अब स्विच टू ब्रांच ही है। अब देखिएगा आप, गिट स्टेटस दिखाने लगा ऑन ब्रांच A, और फिर आप गिट लॉग मारिएगा, अगर आप लॉग, तो ये दिखाने लगा कहाँ है सर ये, अब मेन से कहाँ आ गया है, हेड कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, ABC को, क्या सर। और एक काम करते हैं, नैनो, वहां पे भी जाके देखते हैं, डॉट गेट हेड, है ना सर, कहाँ सर है पॉइंटर, अभी करंट पॉइंटर ABC पे। पहले था हमारा मेन पे, राइट। तो कंट्रोल X, तो पॉइंटर से क्या मतलब है सर? रेफरेंसर ट्रैक करके रखता ना कि कहाँ पे भी काम कर रहे हैं आप, ओके, तो वो तो हम गिट स्टेटस से भी देख सकते हैं। देख सकते हैं, लेकिन उसको मुंह कैसा होता है वो समझा रहा हूं मैं आपको। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने गिट चेकआउट किया, अपने ब्रांच पे आया, अपने ब्रांच पे आती वो हेड कहाँ पॉइंट आउट करने लगा, कहाँ रिफर करने लगा, चेंज हो गया वो जो नया नाउ इट ब्रांच हैज बना मूव टू न्यू ABC। ब्रांच। ABC, राइट। तो ये हट गया यहाँ से सर, अब, है ना जी, चेकआउट करने के बाद। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कुछ कमिट्स करते हैं, एक फाइल ऐड कर देते हैं। सर बस गिट ब्रांच हाइफन नहीं चलेगा? हाँ 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 हाँ, गेट ब्रांच -A, हाँ देखिए हेड कहाँ चले गया, ये भी है। अब फाइल पे जाके देखें, नहीं तो स्टेरी की कैचेज को रिप्रेजेंट कर रहा, समझ में आ रहा बैकएंड में, यस सर। क्या सर। जी सर, वो हेड फाइल
मैं जाके अपडेट कर रहा है करंट स्टेटस जो भी है आप जहाँ भी हेड आपका करंट जो है ना, कोई भी चेंजेस करेंगे। अब यहाँ फाइल ऐड करूंगा तो किस ब्रांच के लिए होगा, वो एबीसी के लिए, राइट? एबीसी। जी। ठीक है। तो गेट ब्रांच हाइफन है। अब मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँ, TOECH टच फाइल फॉर एबीसी, है ना, .txt, और गेट ऐड फाइल फॉर txt, गेट कमिट हाइफन m मैसेज दीजिए, एडेड फाइल टू एबीसी, राइट? ठीक है सर, कमिट कर दिया मैंने। अब ये देखिए आप एक चीज, कि गेट स्टेटस में कहाँ रहेगा, हम ब्रांच एबीसी पे हैं। गेट लॉग मारेंगे तो हम कहाँ पे पॉइंट करने लगा सर, हेड एबीसी। एबीसी को कर रहा, क्योंकि मैंने कमिट क्रिएट किया वहां पे। मैंने एक, इससे पहले अगर आपको याद हो यहाँ पे, तो ऐसा दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि एक ही कमिट था, लेकिन दो ब्रांच थे। एबीसी मेन कमिट एक ही था, जो मैंने एक फाइल ऐड किया था मेन ब्रांच में, अगर आपको याद है तो, है ना, राइट? तो इसीलिए ऐसा दिखा रहा था, लेकिन फिर भी दिखा रहा कि मैं एबीसी को पॉइंट कर रहा हूं, लेकिन इसमें क्लियर कट हो गया। और भी, क्योंकि जैसी कमिट ऐड किए, ये वाला कमिट किस में गया है, एबीसी ब्रांच में किए हैं, तो हेड एबीसी दिखा रहा है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी हाँ। अगर ऐसा हो सकता है क्या कि भले ही ब्रांच हमने गिट ब्रांच जैसे हमने कर रखी है, सेट कर रखी है एबीसी के लिए, बट अगर हम गिट ऐड कमांड में मेंशन कर दें कि ये मेन में डायरेक्टरी में ऐड हो, ना कि एबीसी में, तो क्या गिट ऐड में अगर हम फोल्डर मेंशन कर दें कि मेन में ऐड हो ये फाइल, तो ऐसा होता है कि वो आपको ब्रांचेस चेकआउट चेंज करना करनी पड़ेगा पड़ती है? आपको। चेकआउट करना ही करना पड़ेगा, हाँ तभी जी। वो उसी ब्रांच में जाएगा। ठीक है। हाँ ओके। खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ी मस्ती की चीज है सर, नया चीज सीखने में मजा आता है। अब तक इसे पीछे पढ़ते रहेंगे। आप लोगों को भी लगता है कि नहीं सर? नया चीज पढ़ना, नया चीज पढ़ने में जिसको मजा आने लगा ना, हाँ वो तो फिर मार्केट का क्रीम लेके खाएगा फिर। क्रीम महंगी बिकती होगी सर ये वाली अभी। बहुत मांगी है सर, मिल ही नहीं रहे हैं आदमी लोग यहाँ पे। जैसे ऐसे पूछ रहा हूँ, आप तो मतलब टच में तो, जस्ट फिगर क्या होता होगा अगर ये सब आ जाए तो? 50+। ओके। तो यहाँ पे आपको नया कमिट क्रिएट किए, देखिए नेक्स्ट दो ही बार कमिट किए हमने, एक बार मेन में किए थे तो मेन के लिए एक कमिट क्रिएट होता है, अब एबीसी में किए तो एबीसी का, राइट? अब मैं आपको फिर से मैं क्या करता हूँ, गेट चेकआउट कर रहा हूँ। अरे मैं आई मीन समझो कि वी आर जस्ट प्लेइंग विद गेट, है ना। आप लोगों को एक दो चीजें दिखा रहा हूँ, बड़ी मस्ती कीजिए, बड़ा मजा आएगा देख के आपको। And देखो मैं तो ट्राई करता हूँ बेस्ट सर, कि इंटरेस्ट है ना डेवलप कर दे। गेट चेकआउट, अगेन आई एम गोइंग टू मेन, राइट? अगेन आई एम गोइंग टू मेन, और मैं फिर से वही, क्या गिट लॉग, क्या सर, गिट लॉग कहाँ गए सर हमारा हेड? मैन में हाँ, आ गया। मेल पे आ गए। मेन पे आ गए। ठीक है। अब क्या करते हैं, गेट एक 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 और कुछ चेंज करते हैं इसके फाइल में। किधर था गिट प्रैक्टिस में, फाइल मेन डॉट टीएक्सटी, प्रिंट डालते हैं, प्रिंट टेस्ट सर वन। ये मेन और मास्टर एक ही होता है ना, राइट? ये सर, ये सर, किसी भी कहीं मास्टर आता बाय डिफॉल्ट, कहीं मेन आता, तो गुई में दिखाया था कि आप चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, कमांड है वो। आप जैसी कोई रिपोजिटरी, कोई फोल्डर इनिशियलाइज कीजिएगा ना गिनिट, तो वहां पे आता है कि मास्टर डिफॉल्ट है, अगर चेंज करना है तो मेन से कर सकते हैं, है ना, वो कमांड है। जी, ये फाइल जो हम मर्ज करते हैं, जैसे मानिए एबीसी बनाया, एबीसी में कोई आ रहे हैं फाइल सर, आ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा बस, है ना। ओके 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 सर। आ रहा हूँ मैं, एकदम सीक्वेंस से आ रहा हूँ मैं। तो गिट लॉग हो गया यहाँ पे। अब देखिए, मैं फाइल में चेंजेस किया, तो गिट स्टेटस, है ना, अनट्रैक्ड है, जो चेंजेस हुआ ट्रैक कराएंगे, गिट ऐड
ऐड और फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम गिट ऐड हो गया। गिट कमिट करते हैं, गिट कमिट हाइफन एम एडेड अपडेटेड है ना, अपडेटेड फाइल मेन डॉट टी एक्स टी है ना, ठीक है। अब देखिए, आप गिट लॉग दिखाता हूँ आपको। सर ये गिट गिट ऐड फाइल मेन txt आपने कराया है, ये आपने एक नई फाइल ऐड करी है उसके अंदर, करेक्ट? नहीं, ये जो चेंज किए थे ना उस फाइल को फिर से ट्रैक करा रहा हूँ। अनट्रैक्ट होता है ना जब चेंज मारते हैं, तो जैसे एक लाइन ऐड किया तो ये फाइल अनट्रैक्ड होने लगे। ट्रैक कराने के लिए स्टेज करना पड़ता है ना, स्टेजिंग पे लाने के लिए, ताकि स्टेज का मतलब एक गिट स्टेज पे लाओ ताकि गिट ट्रैक करे उसको, है ना। तो गिट ठीक है ऐड सर। और फाइल नेम दे दिया, फाइल मेन टीएक्सटी ये वाला। अरे डॉट कभी मार देता हूँ ताकि सब फाइल जो भी है सब हो जाए ठीक है सर, ठीक है। उसी के बदले। अब गिट लॉग देखिए, गिट लॉग में आप कहाँ पे आ गए सर? फिर से हमने मेन पे आ गए, राइट। एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। गिट लॉग हाइफन, सॉरी, हाइफन हाइफन वन लाइन कमांड है सर, ये ग्राफ, ठीक है, ग्राफ। तो अभी ग्राफ बनाऊंगा सर। तो हमने, एक सेकंड रुकिए, ग्राफ हाइफन ऑल, ओह एक्सेलेंट। ये देखिए सर, ये जो लाइन है, ये वाला, ये मेन है मेरा। कैसा पता चल रहा? यहाँ पे देखिए, ये एक स्टार मीन्स कमिट होता है यहाँ पे, एक स्टार जहाँ पे भी कमिट करेंगे वो एक स्टार क्रिएट हो जाता है। जैसा एबीसी में एक कमिट किया तो एक स्टार आया, मेन में दो बार कमिट किया, एक बिगिनिंग में एक अभी किया जस्ट। तो मेन में अपडेटेड फाइल टीएक्सटी अभी किया था ना सर मैसेज, और एडेड फाइल टू एबीसी जब हम एबीसी ब्रांच में था, राइट। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ क्रिएट होने लगा यहाँ पे, ये मेन ब्रांच का दिखा रहा, और ये उससे ये जो एबीसी ब्रांच क्रिएट हुआ था ये यहाँ पे कमिट। थोड़ा सा एक और सर ये इसका मतलब क्या, डबल आपने ना डैश डैश ऑनलाइन ये एक तरह से वन लाइन, आर्गुमेंट पास सॉरी। कर रहे हैं सर आप। ऑप्शंस है, जैसा कोई कमांड का ऑप्शन नहीं होता कमांड लाइन का, जैसा शो अच्छा, आईपी इंटरफेस ब्रीफ ठीक है, ठीक है। मारते हैं तो ब्रीफ जैसा है, तो ये हाइफन अपन यहाँ पे देते हैं। तो डेकोरेट है ना, डेकोरेट देते हैं, डेकोरेट। मतलब सर किससे हम क्या चीज देखते हैं, लाइक ऑल से क्या देखेंगे, डेकोरेट से क्या देखेंगे, तो कुछ है इसका? डेकोरेट ये आपका जो है ना, यहाँ पे जबकि बिना डेकोरेट का भी दे रहा था, ब्रांच नेम और हेडमैन और कमिट भी दिखा रहा था। थोड़ा और भी जैसा इंफॉर्मेशन आएगा ना, जो टैग, जब किसी ब्रांच को टैग करते हैं वो टैग भी दिखाने लगा। तो डेकोरेट क्या करता है ना, सारा इंफॉर्मेशन उस कमिट से जो भी होगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा सब, ताकि आपको और इजी हो समझने में। तभी कोई टैगिंग होगी नहीं की है हमने, इसलिए वो नहीं डिफरेंस दिख रहा दोनों में, विदाउट डेकोरेट डेकोरेट में, लेकिन टैग वो करेंगे तो वो डिफरेंस सर, दिखने लगेगा। इसमें तीन कमेंट दिखा रहा है। पहला वाला हेड मेन में हुआ, दूसरा आपने एबीसी बनाया वो हो गया, और नीचे क्या है? और टॉप वो से डाउन मत देखिए, बॉटम टू अप देखना है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू किया हमने, ओके, जो लेटेस्ट है वो टॉप पे दिखाता है। ओके। तो यहाँ से हमने शुरू किया, यहीं से एक ब्रांच बनाया था शुरू में ही, विदाउट कमिटिंग एनीथिंग टू मेन, याद है? हम्म हम्म। अरे बिगिनिंग में मैंने मेन ब्रांच पे आए थे, मेन ब्रांच पे एक फाइल ऐड किए थे, याद है? एडेड फाइल ब्रांच। टू मेन ब्रांच। जी जी तो जी। एक कमिट है, तो ये फर्स्ट कमिट है। उसके बाद मैंने ब्रांच बनाया था एबीसी, तो जो भी इसमें रहेगा वो इसमें चले जाएगा ना सर, राइट, इस ब्रांच में। क्योंकि ये ब्रांच कहाँ से बना है, कहाँ से बना है, देख रही है, मेन से बना है ना। क्या ये सर क्लोन के तरह होता है? जो एबीसी बना है वो इसके अंदर मेन के अंदर वो क्लोन कर लेगा, सारी चीजें मेन वाली एबीसी में चली जाएगी। एग्जैक्टली वही ना ब्रांच का मतलब है, ओके। जो भी आएगा आ जी जाएगा हाँ। वहां पे। आपको एक ओके। चीज बताऊं, आपको जो आप लोगों ने किया है, चलता मैं आऊंगा फिर से यहाँ पे। थोड़ा सा एकदम लाइट लेके समझिए, हमें इसकी ज्यादा सीरियस नहीं होना, पता नहीं इसके बारे में ज्यादा ना, इसको एंजॉय करना, सोचिए लाइट लेके। क्या है, डिस्कशन कन्वर्सेशन में रहेंगे, है ना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, लेकिन भले मैं एक फ्लो है मेरा। पहले देखे, पहले के सेशन में हमने ग्राफिकली कवर किया, मैं ज्यादा फोकस था, राइट। आज कहाँ पे फोकस्ड हूँ मैं? सीएलआई पे, लोकली। तो और उसमें भी एक एक चीज सोच रहा हूँ, होता ना एक लेगो को जैसा, ऐड करते रहा हूँ, कर रहा हूँ। हैंडसेट फोर ज्यादा जाऊंगा ना तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। तो एक चीज देखिए,
हमने यहाँ पे आया, ये एकदम जो हमने किया वो ग्राफिकली दिख रहा कि नहीं दिख रहा सर? यही है सर ऑप्शन यहाँ पे, ग्राफ जो यूज कर रहा हूँ देखने के लिए। ऑल में ऑल ब्रांचेस के लिए दिखाएगा सर, ठीक है, जो भी एवरीथिंग, ठीक है। और तो यहाँ पे एक चीज में हम अपने डायरेक्टरी में चलते हैं ना, सीडी कौन सा था सर? ऑटोमेशन बंडल टूल, राइट। देखिए सर, आप लोग के पूरे करना में मैं यहाँ पे देखता हूँ, गेट लॉग, एक सेकंड, यही वाला कमांड यूज कर लेता हूँ ना, ये ठीक है सर। चलिए हम जाते हैं एंड पे। पहले एंड पे हमारी जो शुरू हुई थी, यहां से इनिशियल फर्स्ट कमिट है सर मेन ब्रांच पे, फिर क्रिएटेड नितिन टेस्टिंग, एक ये ये ब्रांच कुछ किया। और आ गया सर। हाँ, कि नितिन कहाँ से आ गया सर यहाँ पे? ये कमिट, ये मैसेज दिए हैं, मैसेज है, कमिट मैसेज है, ये कमिट है ना स्टार, लेकिन वो मेन ब्रांच पे ही है। लेकिन सर ये हमने तो आज तो नहीं किया ना हमने ये। तो यही तो पूरा हिस्ट्री लेके आया रहा सर, वो जब से शुरू हुआ है वो रिपोजिटरी। ये अच्छा। ये दूसरे वाले पुराने रेपो का है। पुराने लोग हैं, ये पुराने लोग हैं। हाँ, ये दूसरे वाले पुराने रेपो लॉग का पे है। है। तो अरे ये यहाँ क्या हम, कमांड कैसा है इसकी? हाँ, गिट लॉग और ऑप्शंस हैं, मैं पुश कर दूंगा। अभी अभी चाहिए क्या आपको? चेक करना है, कर सकते हैं, मैंने रखा था आप लोग के लिए। ये रहा ऊपर ही है आ, सर। ये वाली है, डाल दिया सर। डाल दिया आपने, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट टॉप पे दिखेगा सर, अमृतसर, है ना? टॉप टू हम्म। डाउन नहीं आना है, हमें बॉटम टू अप जाना है, नीचे जो। तो ये देख रहे हैं, ये कमिट खाली मेन ब्रांच पे ही हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए, कमिट कमिट कमिट, ये अलग मैसेजेस है, कमिट मैसेज है, ये कमिट की रेट हुआ, कमिट आईडी यहाँ पे लास्ट के कितने, तीन तीन छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, लास्ट के 7 डिजिट दिखा रहा है ये, जो कमिट आईडी है। तो उसके बाद यहाँ तक ये मेन में, ये नितिन साहब ने इसी में पुश किया है। आज है नितिन सर, आप हाँ लोग के जी सारे कारनामे यहाँ पे रिकॉर्डेड होते हैं सर, है ना? तो हम्म। आपने मेन ब्रांच पे किया है, तो एक्चुअली ऐसा पनिश करता हूँ लेकिन छोड़ दे रहा हूँ आप, है ना? ये इतने सारे कलर का कुछ मीनिंग होगा सर, ये जैसे सर पर्पल, मीनिंग अभी येलो। आ रहा है, ब्रांचेस हैं अलग अलग, अलग अलग जगह पे जो ब्रांचेस की रेट हो उसी हिसाब से कलर एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे कितने ब्रांचेस सर? एक दो तीन चार ब्रांचेज है, फिर इस वाले से यहाँ एक की रेट हुआ है। तो कलर ये डिस्टिंग्विश करने के लिए है, ताकि आप ट्रैक कर सको। अच्छा, ये ग्रीन जो कलर निकला है, इसको आप क्या इसको बोलते थे ना, मेन ब्रांच से जो निकलता था, नाम दिया था आपने अब कुछ यहाँ उसका। ब्रांच से आपने एक नया ब्रांच क्रिएट हुआ है सर, यहाँ पे हम्म। नया ब्रांच, ब्रांच का क्या नेम है? जाके यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे राहुल LB, ये अरे सॉरी, वो ये वाला ब्रांच है, ये वाला जा रहा सर यहाँ पे। चलिए सर देखते हैं क्या नेम है इसका, रास्ते में घूमना हो जाए, यहाँ जा रहा है ये वाला, येलो येलो सेकंड वन है यहाँ पे सर, अजय 81। बाप, आपने तो बड़ी लंबा सर ये तो काम किया सर। और भी ऊपर जा रहा है सर। है, और ऊपर भी हाँ जा रहा है लेकिन ना। फिर भी यहाँ पे नहीं नहीं। कमिट जो हुआ पे हाँ। यहाँ पे दिखा दिया है। अच्छा, इसमें मर्जर कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करी थी आपने पुराने लेक्चर यहाँ में। से, है, मर्जर मर्जर जहाँ पे कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, आप कह रहे थे ना कि रोज का रोज करते रहो, अगर आप आएंगे सर आएंगे, अभी तो अच्छा। यही सब कमांड लाइन पे सब कुछ बताऊंगा आप। मैं तो ग्राफ दिखा रहा हूँ, आप जो काम करते हो कैसा दिखता है, गिट मर्ज रीबेस सब बताऊंगा सर, है ना? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अमृतसर, नहीं? बहुत बढ़िया। लेनी है तो क्या तो करेंगे सर? क्या बोल रहे हैं? क्रीम लेनी है तो कुछ ना करना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर। सर आप लोगों को बोलो या बोला ही हूँ मैं, 35,000 बहुत वैल्यूएबल चीज़ है सर, मेहनत कीजिए आप लोग, है ना? लेकिन वो तो कमा लेंगे खैर, लेकिन टाइम जो है ना जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू बी सीरियस लेकिन फॉर ए इतने लंबे कपल ऑफ वीडियो मंथ्स। सर, इतने लंबे वीडियो सर देखे नहीं थे। इसीलिए तो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहिए, है ना? वो तो वर्स्ट केस के लिए है, ठीक है सर। तो ये देखिए, ये इसको ट्रैक करना पड़ेगा, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा सर, अब लग रहा है। हाँ। नहीं, ये ऊपर जाके सर दिख रहा है, विजिबल ये है, क्लियर। आप ऊपर करो इसको। क्लियर है ना? वीलैन हाँ। हाँ क्लियर है, ऊपर ये करके देखिए ऊपर एक और चीज ऊपर है, ये मेन जो ब्रांच जा रहा है, यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट हुआ है, यहाँ हाँ। से एक हुआ है, यहाँ से हुआ है, ठीक है।
और ये ब्रांच देखिए यहाँ पे ये गया, यहाँ से एक नया ब्रांच क्रिएट हो गया है, ये इस ब्रांच से ब्रांच हम्म क्रिएट हुआ है। ये वाला ब्रांच जो पहला वाला ये जाकर मर्ज हो गया है मेन में, है ना। ठीक है, वैसे ही फिर आगे जाके इस मेन ब्रांच पे दो कमिट हुआ है। ये मैं होऊंगा, बार बार नहीं करता हूँ हर हफ्ते, क्योंकि मेन पे तो मैं ही कमिट करता हूँ ज्यादा। तो यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ जो कमिट, उसके बाद इन्होंने, गौरव साहब ने एक क्रिएट कर लिया है ब्रांच अपना मेन से, है ना। तो आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं तो सर एक कमांड से पता कर लूंगा क्या सर। तो फिर ये जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे कमिट हुआ यहाँ से। ये एक नया ब्रांच क्रिएट हुआ, कौन है, योगेश सर है ना। यहाँ से एक और यहाँ पे ये ब्रांच क्रिएट हुआ, कौन है, हमारे शुभम सर है। ठीक है, बड़ी मस्ती की चीज है सर। ठीक है, तो पूरा ट्रैक है, ये कमिट्स हैं, ये जो हैं हमारे अजय सर, जबरदस्त कमिट किए हैं। जस्ट टेस्टिंग, ही हैज स्टार्टेड टेस्टिंग। हाँ जी ठीक है। सर। एनर्जी टेस्ट फर्स्ट, होमवर्क टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। हाँ, तो सर ये एडवांटेज है, मुझे तो कोई भी जाने की जरूरत नहीं है, नहीं। अगर मैं पुल कर लिया लेटेस्ट तो सब लोकली देख सकता हूँ ना मैं। तो ये देखिए हेड कहाँ है, अभी मेन पे है सर, है ना। यहाँ पे मैंने कमिट किया एडेड वीडियो लिंक सर, है ना, लास्ट वीक का एडेड वीडियो लिंक। तो सर तो इंटरेस्टिंग लग रहा सर। मेरा नाम नहीं आया सर कहीं। आप सर इसमें डेट और टाइम वगैरह लिखा है क्या? डेट टाइम मैंने भी सर एक पुश पुल तो किया था। कमांड कुछ होगा पक्का। सुनील का और हमारा नहीं दिख रहा सर। हम पढ़ते नहीं है सर तो। ये मैं लोकली पुल नहीं किया हूँ, रुकिए एक बार गेट पुल करने दीजिए मुझे। आप लोग किए कि नहीं ये पता चल जाएगा मुझे अभी। और ये मेरे आ, में एंड आ गया, ये जाता नहीं है ये क्या, नीचे लास्ट में। क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करूं क्या सर? एक सेकंड सर। रुको अभी अभी सर को पढ़ लेते ओह, ये देखिए सर कौन कौन लोग आ गए। न्यू ब्रांच सुनील, न्यू ब्रांच अमृत सर, आ गए आप लोग भी अब, थैंक यू। है ना। तो अब चलिए ये, और आप गिट लॉग मारेंगे तो और कुछ आएगा, वाह वो सर, है ना। नीचे चलते हैं। सर एक क्विक क्वेश्चन, हाँ मैंने ना अपना टोकन चेंज किया था, हाँ वो आई नीड टू चेंज दी टोकन, मैंने ऑलरेडी हाँ। सेट कर रखा है, तो वो कहाँ से होता है? चेंज किए हैं, गिटहब पे चेंज कर दिए हैं, ये करना है। नहीं, कर दिया था तो अभी ऑथेंटिकेशन फेल आता है मुझे ना जब मैं पुश करता हूँ, तो ये कहाँ से मुझे चेंज करना है वापस, यूजर नेम पासवर्ड रीपिंग इसमें? करना पड़ेगा इसको, फिर से रीऑथेंटिकेट करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड को। हाँ सर, वो उसका कहाँ से होता है गिट के बताएंगे? ऑप्शन में जाके देखना पड़ेगा, इसको देखता हूँ मैं, है ना, ठीक है सर। ये ऑप्शन। तो सर समझ में आ रहा, आप तो कुछ समझ सकते हैं बैठ गए चश्मे लगा के जरा देखिए आप लोग कौन कहाँ से क्या किए हैं। ठीक है, और वैसे ही हेड चेंज देख रहे हैं सर, यहाँ ब्रांच क्रिएट हुआ और यहाँ पे जाके हेड जो है ना, पेन ओरिजिन मेन दिखा रहा हेड, मर्ज पुल रिक्वेस्ट 5 फ्रॉम नेटजी रविकांत, इन्होंने पुल किया है। ठीक है, अभी जानते हैं ये मेन पे ही रविकांत सर हमारे कमिट कर दिए हैं यहाँ पे, देखिए अभी। अब मैं आज पुश करूंगा तो मेरा फेल आएगा, फिर पुल करके फिर रिवर्स करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग सोचते होंगे ना कैसा मुझे पता चलता है, तो आप लोग को अब आइडिया आ गया। अब ये जो आप लाइन ओवरराइड की बात कर रहे थे वो यहीं पे समझ में आएगा हमको? जैसे मैं भी कौन उसी पे सा, काम कर रहा हूँ, सुनील भी कर रहा है, रोहित भी कर रहा है। सब यहीं पे, मैं जा रहा हूँ, ये तो मैं खाली दिखाने के लिए खोल लिया, मैं तो यहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ ना। अब देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे हम, ये वाला ग्राफ बनाऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अच्छा, ठीक है। ताकि क्लियर हो। बस आप लोगों को पेशेंटली सुनना है पूरा, ये प्लान्ड लेक्चर है सर, है ना। तो ये तो थोड़ा सा ज्यादा फैंसी दिखाने के लिए मैं दिखा दिया था कि आपको आइडिया लग जाए कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, है ना, नथिंग मोर देन दैट। तो सी डी
सीडी चलते हैं और सीडी गेट प्रैक्टिस में चलते हैं, गेट लॉग यहीं पे चलाते हैं। तो अब ये सर डेवलप होना शुरू हुआ सर, है ना? हाँ सर, 1 मिनट से अपनी स्क्रीन दिखाऊं सर? जी हाँ हाँ, ये उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। इधर गेस्ट हो। सर ये ना एंड नीचे आ रहा है, ये मैं ना तो जा रहा है आ रहा है, ये दिख रहा क्यू है मारिए, है क्यू क्यू प्रेस क्यूट कीजिए। क्यों? क्यूट कर दिए, क्यूट, QUIT। हो गया, यही ये पूछ रहे थे सुन, आप? मेरे को भी आया था ये। हाँ ये हाँ अब क्यू मारिए। पूरा क्यों नहीं आ रहा है इसमें? अगर मैं देखूं तो नीचे तक क्यों नहीं जा रहा? अब इससे नीचे नहीं है कुछ भी, एंड आ गया तो नहीं जाएगा इसके नीचे। अच्छा, तो मुझे क्विट करना पड़ेगा। हाँ बस, थैंक यू। राइट सर। तो अब हम चल रहे हैं सर, यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये हम थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं और चीजें एक दो चीजें सीखेंगे। अब यहाँ पे हम अब मैं थोड़ा सा मेन में एक और कमिट जस्ट टू मेक अ ग्राफ, है ना सर? हम गिट स्टेटस में मारेंगे। तो आप देखिए हमारा मेन ब्रांच पे है, यहाँ पे इंटेंशनली मैं जा रहा हूँ कुछ चेंज करने, ताकि वो ग्राफ बनाऊं बढ़िया आप लोग के लिए। ठीक है, तो git status, git add, file main, and git commit -m added, updated head file main dot txt, सेकंड टाइम कर रहे हैं, सेकंड टाइम रख देते हैं ना, एंड गिट है ना। अब गिट लॉग फिर से मारते हैं, अब देखिए कैसे ग्राफ बढ़ेगा अब ऊपर। देखे ना सर, मेन में एक और कमिट ऐड हो गया। अब मैं जा रहा हूँ चेकआउट करने एबीसी को, इसमें भी थोड़ा एक दो और कार्य को थोड़ा सा बढ़िया दिखे, है ना सर? फिर एबीसी से भी एक हम ब्रांच क्रिएट कर लेंगे, मेन से भी, है ना? तो चलिए थोड़ा सा बैठ के आप लोग भी ये खेल तमाशा कीजिएगा ताकि परफेक्ट हो जाए। तो गेट चेकआउट एबीसी, राइट? और एबीसी में जाके थोड़ा सा मैं, एबीसी में आप देखिए फाइल मेन भी है सर, है ना? यहाँ पे लेकिन अपडेट नहीं आया वहां से, क्योंकि वहां पे जो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे नहीं आया। मुझे मर्ज करना पड़ेगा इस ब्रांच को, तब जाके वो जो चेंज किया हूँ, क्योंकि खाली फाइल क्रिएट करके पहला कमिट किया था, उसके बाद ही मैंने एबीसी ब्रांच बना लिया था, अगर आपको याद है ना? तो यहाँ पे हम चलते हैं एबीसी पे, और एबीसी में लिख देते हैं प्रिंट टेस्ट एबीसी, है ना? और इसको गिट चेकआउट, गिट ऐड फाइल and git commit -m updated file for abc.txt फर्स्ट टाइम, है ना सर? अपडेट किया हमने। तो आप देखिए फिर लॉग वाला, बढ़िया बन रहा है सर, दो कमिट इसमें दो कमिट इसमें, है ना? ठीक है। ये और मेन में कमिट क्यों दिखा रहा है? मेन में अभी कम किस में, एबीसी में दिखा रहा ना लास्ट है। अच्छा, ये भी ओके, ऊपर वाला देख रहा है ना मैं, अब ठीक मेन है। साइड में आ गया है, अब मेन मेन यहाँ साइड में। पे एबीसी लेफ्ट हो गया है, क्योंकि करंट मेरा हम्म। ब्रांच दिखाएगा सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड, है ना? हाँ, ये थोड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है, अभी लेफ्ट में जैसे जा गए। चेकआउट जिसमें करेंगे ना, वो वाला लेफ्ट मोस्ट साइड आ जाएगा। मेन ब्रांच होगी। हाँ, मेन तो अंदर रह नहीं, गया। मेन राइट साइड में चले गए आप। क्यों, मेरा कहाँ पे हूँ मैं अभी? मैं एबीसी पे हूँ ना, तो एबीसी लेफ्ट साइड आ रहा, और हम्म। और मेन ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये मेन ये वाला और सर एक बार आपका। मेन में स्विच करेंगे जब। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। मैं भी वही सोच रहा था हाँ हाँ, कि क्योंकि ना ये थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, गेट मेन। अब फिर लॉग मारते हैं, आप देखिए। अभी वही है। एक सेकंड गेट
स्टेटस देख लेते हैं। मेन ब्रांच पे आ गए, वर्किंग ट्री क्लीन। मुझे लग रहा है एक कमिट करना पड़ेगा तब जाके वो स्विच करेगा। करते हैं एक और कर ले। नई मेन फाइल पे है ना? बनानी है। वो शायद रिसेंटली कमिट के हिसाब से दिखा रहा है वो लेफ्ट हाँ हाँ, साइड वो में। रिसेंट जिस पे कमिट होगा वो लास्ट लेफ्ट मोस्ट आएगा, नहीं सर? हाँ 3 3 दिखाते हैं, कोई नहीं। सर ये हेड तो मेन पे ही पॉइंट कर रहा है ना अभी, हाँ आप जी, हाँ तरफ जी, देखे तो हेड हाँ जी, मेन पे वो तो पॉइंट कर मेन रहा पे है। ही करेगा। ओके। लेकिन वो जो ये वाला लाइन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा? तो गेट ऐड फाइल। सर यहाँ पे मेरी मेन ब्रांच जो है वो गिट प्रैक्टिस है, करेक्ट? मेन ब्रांच जो मेन है गिट प्रैक्टिस मेरा। तो रिपोजिटरी है मेरी, लोकल। हम्म। अपडेटेड फाइल मेन थर्ड टाइम, राइट? अब चलते हैं गिट लॉग मारते हैं, क्या चेंजेस आ रहा। यस, लेफ्ट साइड आ गया ना सर, नहीं? तो जी। जो लास्ट कमिट होगा वो लेफ्ट साइड आ रहा है, जिसपे आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं वो वाला लेफ्ट साइड आ रहा है। तो सर देखिए, ग्राफ बिल्ड होने लगा ना, हम्म, राइट? अब हम क्या करते हैं, एक एबीसी से क्रिएट करें, या चलिए एक बार एबीसी को मर्ज कर दें मेन में, क्या बोलते हैं आप लोग? अब फिर ठीक है ऊपर सर। फिर ब्रांच बनाएंगे, नहीं? हम्म। एक बार मर्ज करें। तो मैं हूं किस पे? गेट मेन स्टेटस पे। मेन पे हूं मैं, राइट? तो देखिए, कभी भी मर्ज करते हैं ना तो किसी बाहर वाले ब्रांच को ला के मर्ज करते हैं, वी ब्रिंग इन। जैसा मेन में हूं तो विल ब्रिंग अदर ब्रांच इन मेन। ये टर्म ये याद रखिएगा। व्हेन वी मर्ज, व्हाट वी मर्ज, वी ब्रिंग समथिंग एट होम टू मर्ज, राइट सर? मेरी चीजें समझ में आ रही है? जैसा हम्म। ये मैं मेन पे हूं, यहाँ पे मेन पे, तो मैं किसी और ब्रांच को लाऊंगा इसमें मर्ज करने के लिए, ठीक है सर? इन इन करूंगा यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे मेन में हूँ, तो बोलूंगा गिट मर्ज। किसको लाऊंगा सर? एबीसी को, ठीक है? ओह, मैसेज ही नहीं दिया मैं भी, कोई नहीं। तो ये नैनो एडिटर है, यहाँ पे मैं मर्ज मैसेज दे सकता हूँ मैं, है ना? तो दे देते हैं हम। और एक और चीज है, मर्ज जब करेंगे तो एक और नया कमिट क्रिएट होगा सर, ये याद रखना है हमें। एक नया कमिट होगा मर्ज करते वक्त। मैं दिखाता हूँ आपको। मर्ज मर्ज एबीसी इन मेन, है ना? मेन, कंट्रोल एक्स एंड यस, सेव करने के लिए, ठीक है सर? तो ये अब चलते हैं वही लॉग देखते हैं, ये वाला। देखिए सर क्या हुआ सर, मर्ज हो गया। जब मर्ज हुआ तो एक कमिट क्रिएट हुआ कि नहीं? नया नया हुआ ना सर कमिट। और कौन से जो मर्ज के टाइम जो मैसेज दिया वो एक आ गया ना मैसेज मेरा, क्या सर? जी सर, ये नैनो एडिटर वाला नहीं समझ में आया सर। गेट मर्ज कमांड डाला तो वो नैनो एडिटर में नहीं, चला अगर गया। मैसेज वहीं दे दिया रहता ना मर्ज के टाइम तो नहीं ले जाता मुझे। लेकिन नहीं दिया मैसेज, तो फिर वो लेके गया वहां पे मैसेज दिया। और एक्चुअली होता भी है, ये वाला बेटर होता है कि आप वहाँ फाइल पे जाए और आप एडिट कर सकते हैं ना, कोई लाइन हटाना है तो हटा सकते हैं, है ना? वो सब चीजें आऊंगा उस सर पे। मैं अभी रिबेस बताऊंगा, वो चीजें दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। और स्क्वैशिंग बताऊंगा, उसमें ज्यादा उसका एडवांटेज दिखेगा आपको। बस खाली पेशेंट थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए कि क्या हम कर रहे हैं, है ना? सर मुझे ना ये एरर आ रहा है, ये डेकोरेट वाले में अनरिकॉग्नाइज बता रहा है। तो ऑनलाइन की है ये, वन लाइन है, वो एन ई है, वन लाइन। हाँ ओके। सॉरी। ठीक है। ठीक है क्या सर, अमृतसर ये देखे आपने? यही चाह रहे थे ना आप? हम्म। तो हमारी सर मतलब ये मेन ब्रांच ग्रीन था नीचे वाला, राइट? हाँ, ग्रीन अब आके पे मर्ज हो हमने गया एक यहाँ पे। नया ब्रांच। अब यहाँ से मान लीजिए एक और ब्रांच क्रिएट ओके। करते हैं हम। क्या सर, एक और ब्रांच क्रिएट तो करें? ये मेरी यदि ब्रांच अब चाहे तो हम डिलीट भी कर सर सकते सर इसको एक बार यस, समराइज करोगे हैं। प्लीज? हमने स्टार्टिंग से क्या करा, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जी हाँ। स्टार्टिंग में हमने एक हाँ, मेन कंफ्यूजन तो हो रही ब्रांच, है पर। हाँ, हाँ। एक बर, एक मेन ब्रांच बनाया था मैंने मेन में, है ना? अरे जब उसको गिट इनिट किए थे एक ब्रांच क्रिएट हो गया था मेन, याद है? करेक्ट। उसमें एक फाइल ऐड किए थे हमने, एडेड फाइल टू मेन ब्रांच, राइट? हम्म। वो फाइल ऐड के उसमें फाइल में कुछ डाले नहीं थे हम, ठीक है?
लेकिन फाइल ऐड किए थे उसको हमने कमिट कर दिया था। उसके बाद एक नया ब्रांच क्रिएट थे एबीसी, किए थे ना सर? हम्म। और एबीसी में एक दो तीन कमिट किए थे हमने, सॉरी, यहाँ पे एक दो दो कमिट कमिट किए हैं ना। एक बार ऐड किए फाइल, ठीक है, और एक बार मर्ज किया है। नहीं, एक बार अपडेट किए, एक बार ऐड किए फाइल, एक बार अपडेट किए, दो कमिट किए ना एबीसी में। बट सर नीचे भी तो है कमिट ये वाले जो है फाइल। और वो ये मैं इसका मैसेज दिखा रहा था। अच्छा, वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप? सर ये जो हाँ स्टार है ना मेन में, ये तो तीन हाँ। कमिट किए हैं, उसका आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। ये अच्छा वाला जो है ना इसका नहीं है, ये स्टार का है, हाँ स्टार जहाँ अब आएगा उसके ठीक है सामने का सर, है। थोड़ा सा ये तो था कि वो क्या रहा नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक हाँ दैट, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है बिगिनिंग में। ये जो मैसेज आ रहे हैं ना, ये इस वाले के नहीं है, ये स्टार के वाले के हैं। स्टार वाले के, ये मेन में जो हुआ है। तो ये कलर तो ऊपर सिर्फ से मेन में सर हेड के पास वो देखो, वो रेड लाइन आए, वर्टिकल 3 लाइंस जो है रेड है, फिर लास्ट हम्म, में आके ग्रीन हो गए, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ? कौन सा ग्रीन हो गया है? सर जो लेफ्ट मोस्ट जो वर्टिकल लाइंस आ रहे हैं ना, पाइप लाइंस हाँ जो है हाँ, ये स्टार के रेड आ नीचे, रहा, हाँ हाँ हाँ। उसके नीचे फिर ये 3 कमिट हुए, ये फिर फ्रॉड है नीचे वो क्या नहीं, ग्रीन सर? हो यहाँ गया। से स्टार्ट हुआ है। अच्छा वो ग्रीन इसलिए हो। तो ग्रीन सर मुझे लग रहा है मेन ये ब्रांच, दोनों बराबर है अभी फिलहाल ना, तो ओके। ये दिखा रहा, उसके बाद जैसे ही इसमें चेंज हुआ ये अलग कलर कर दिया है ना। ये फ्रॉड बोलेंगे क्या सर? मेन मेन ब्रांच। ब्रांच, हाँ आप आई मीन अलग से भी प्रॉड ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेन ब्रांच ही प्रॉड हो। अब बहुत सारे जगह लोग मेन ब्रांच को ही प्रॉड ब्रांच समझते हैं। तो इट्स अप, डिपेंड्स अपॉन द एसएमईज हाउ दे आर गोइंग टू यूज, एंड अकॉर्डिंगली दे विल डॉक्यूमेंट। अच्छा है, पढ़िए आप लोग, हम ये सब पढ़ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली थियोरेटिकली चीजें होती हैं ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल में, है ना। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें रखा जाता है बेटर मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअली मेन ब्रांच डिफॉल्ट ब्रांच होता है। मान लीजिए क्लोन किए पुश करेगा, सीधा मेन में जाएगा, मेन में प्रोटेक्शन है तो फेल हो जाएगा। अगर मेन में नहीं है तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग मेरे मेन में आप लोग कर देते हैं, पुश करते हैं ना, दैट्स बाई मिस्टेक, राइट। क्योंकि क्लोन करते हैं आप बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच आप पुश, तो प्रॉड ब्रांच एक और प्रॉड के नाम से क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो सारे मिस्टेक्स ना हो। लेकिन मतलब वो हाँ, मेन फ्रॉड जो ब्रांच होती है को वो भी मेन प्रॉड, ब्रांच की तरह ही होती है। हाँ आई मीन मेन कुछ है नहीं, मेन भी एक नॉर्मल ब्रांच की जैसा ही है, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग से है। हाँ, बट ये होता है कि वो यहाँ डिफॉल्ट ब्रांच है। यहाँ पे सर जो ग्रीन कलर का आपको दिखा रहा है, वो हम्म इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ग्रीन कलर हमने सारे मेन ब्रांच में पुश किया। हमने जहाँ पे ब्रांच देखिए, जैसे वो रेड वाला क्यों रेड कर रहा है वो, क्योंकि हमने डिफरेंट ब्रांच में तो सेग्रीगेट कर रहा है कलर से कि आपने सारे चेंजेस ग्रीन कलर मेन में किए हैं, और आपने रेड कलर का फाइल एबीसी में ऐड किया है। अगेन फिर आप वहां पे लास्ट में जाके मोड मेन में आ गए, यहाँ पे हाँ, हेडर, तो अजय साहब पूछ रहे इसीलिए। थे हाँ यहाँ पे ये दोनों ग्रीन हाँ क्यों है? हाँ जी हाँ, सर। तो यस, ये क्योंकि मेन वो फाइल तो में ये तो अलग अलग मेन, कलर अलग अलग करके आप ग्राफ में आइडेंटिफाई कर पाओ, है ना जी, वो तो जी जरूरी कि कौन से फोल्डर में आप ऐड कर है। रहे हो, जी एक हाँ, एक जी हाँ, जी फोल्डर हाँ, जी को हाँ। एक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे तो एक कमिट क्रिएट हुआ, राइट सर? जब मर्ज करते हैं एक नया कमिट क्रिएट होता है, ये याद रखिएगा। इसके बेस पे मैंने एक और चीज मुझे आगे बताना है, ठीक है। तो नया ब्रांच और मेन पे आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़े अब। इसमें मेन से एक और ब्रांच क्रिएट करूँ, है ना। ये गिट मर्ज वाली कमांड क्या तो थी इसमें सर? लेटेस्ट पे हम कहाँ पे, वो कैसे पता चलता है इसमें ये हैं। कहाँ हमने लास्ट वर्क किया है? ये यहाँ पे ऊपर, है, ये वाला है ये लास्ट। ये सबसे वाला है ऊपर। सर, सबसे बॉटम ऊपर टू, जाएगा। नीचे से ऊपर देखना है, नीचे हिस्टोरिकल होता है, लास्ट वाला होता है आपका एकदम लेटेस्ट, है ना, ऊपर टॉप पे। इसको सर हम लोग करेंगे तो हम लोग अपना बनाएंगे कि, क्योंकि हाँ, इसका तो अपना हमने, बनाइएगा सर, ये तो लोकल बनाए हुए हैं, ये तो कहीं रिपोजिटरी भी नहीं है ना अभी गिटहब पे। नहीं, वो जो आप फोल्डर वहाँ एक और रिपोजिटरी बना रखे थे ना जिसमें अभी आप गए हुए थे, वो तो हमें एक्सेस नहीं है, तो हम लोग अपना बना के कर लेंगे, राइट। अच्छा, ये वाला, हाँ ओके ओके, दे दूंगा एक्सेस आप लोग को भी। या आप अपने में पुल करके देखिए ना गिट लॉग। हाँ, अपने में ही बना ले, हाँ राइट। अपना, अरे आप लोग का तो और लंबा हिस्ट्री होगा। जी जी, हम लोग को बहुत बड़ा है इसलिए पूछ रहा था हाँ, और सुन। क्या। सर वही तो अपना हिस्ट्री इतना बड़ा है कि वो आ नहीं रहा है, तो इज देयर अ वे कि इसको लिमिट कर सकते हैं, देन लेट्स से 50 लाइंस देखनी है, 100 लाइंस देखनी है? हाँ, चैट जीपीटी में मारिए, बता देगा कमांड हेड कमांड ऑप्शन में सर में भी यूज कर सकते हैं। है ना। ओके।
पाइप के साथ हेड कमांड डालेंगे ना तो हो जाएगा, वो जितना चाहिए आपको उतना मिल जाएगा। हेड करके, हाँ, हेड वो कि कितने जितने कमिट्स है तो कितने चाहिए आपको, लिमिट है ना। वेरी गुड, हाँ। हाँ। जैसा हेड लेटेस्ट को कर रहा, राइट। हेड नहीं। हेड हेड से -1 क्या है सर, ये वाला कमिट है ना, हेड से -1। तीसरा कमिट, ये जो लाइन में आता है ना कमिट, ये कितना चाहिए यहाँ तक, तो हेड यहाँ के लिए मानना पड़ेगा, मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ तक के लिए, है ना सर। आ रहा हूँ सर, सर वो बताऊंगा हेड का, जो रिवोल्ट कराऊंगा ना मैं आपको, तो वहां क्लियर हो जाएगा हेड का मीनिंग। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन आ रहा, जरा लिख लीजिए कहीं, ताकि नहीं तो फिर फ्लो हमारा जो है ना गड़बड़ होगा। कमांड बेस्ड है ना, थोड़ा सा विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, तो इत्मीनान से सर ये पढ़िए सर। टर्मिनल थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा। हाँ हाँ, देखो। तो एक ब्रांच क्रिएट करो, गेट ब्रांच -c XYZ करते हैं, ठीक है। और सर जो हमने मर्ज किया था हाँ, वो हट गया होगा या अभी होगा वहीं पे, जो दूसरा ब्रांच था एबीसी? ABC होगा। गेट ब्रांच देख लेते हैं एक बार, -A ना, हाँ। ABC है। इसको रिमूव करने के लिए एक ऑप्शन डालना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि आर या कुछ डालना पड़ेगा, देख देख लीजिएगा जरा एक बार। ठीक ठीक सर। जैसा मर्ज करते वक्त ब्रांच को डिलीट भी करना है, वो हम्म। होता है ऑप्शन। तो गिट ब्रांच -C क्रिएट करना है, XYZ क्रिएट हो गया, लेकिन अभी भी मेरा हेड कहाँ है, मेन पे है, राइट। तो गिट चेकआउट करूंगा, गिट चेकआउट, ठीक XYZ है। ये ऐड अभी अभी सर वो हमने ऊपर क्रिएट किया, ऐड नहीं किया है, केवल XYZ। सर मैं थोड़ा सा हम करने क्या जा रहे हैं एग्जैक्टली? तो थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, वो ज्यादा हो रहा है। इसमें ना सर इंटरनेट एक्स कनेक्शन ड्रॉप हो गया एक्स सर का। ड्रॉप होगा। नहीं, ड्रॉप नहीं हुआ सर, है यहीं पे वो सर छोटा रखिएगा इसको, थोड़ा रिवीजन करके फिर अगले हफ्ते नहीं कंटिन्यू। नहीं, 11 बजे 10 मिनट और, एकदम छोटे टुकड़े टुकड़े में पाएंगे सर इसको, नहीं तो फिर चेकआउट मुश्किल है। XYZ करोगे ना सर, चेक इसको तो करंट से चेकआउट गिट होके चेकआउट XYZ। XYZ है ना। हाँ जी। तो एक बार गिट लॉग मारते हैं, अब देखते हैं कहाँ गए हमने। सर ये अभी जो आपने करा है हाँ। XYZ, नई फाइल बनाई कोई हमने भी? अरे ब्रांच, नहीं, नया ब्रांच बनाया XYZ, गिट ब्रांच सी दिस, अच्छा। यहाँ पे बनाया ना नया ब्रांच, हम्म, ठीक है। अभी हम कहाँ है, हेड XYZ पे है ना। तो यहाँ पे एक नया फाइल ऐड करते हैं, नया फाइल ऐड कर देते हैं, फाइल XYZ डॉट टी पर एक्स जो टी भी नया ब्रांच बनता है वो हमेशा मेन ब्रांच के साथ ही नहीं 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 नहीं, जाता है। किसी ब्रांच से भी बना सकते हैं। तो सर जिस इसमें ये मेन ब्रांच पे चला गया ना, जो आपने यहाँ पे XYZ इस बनाया। केस में मैंने ब्रांच, मेन ब्रांच से बना रहा हूँ, थोड़ा ग्राफ बढ़िया दिखाने के लिए, फिर से मैं आता हूँ ब्रांच से ब्रांच बना देता हूँ, ठीक है। ओके ये देखिए, जिस ब्रांच में आप रहेंगे ना, ये कमांड चलाएंगे, उस ब्रांच से क्रिएट होगा नया ब्रांच, है ना। ओके जैसा ओके। यहाँ पे तो हम बता नहीं रहे किस ब्रांच से करना है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा, जिस ब्रांच पे आप हैं और ये कमांड चलाए हैं, है ना, राइट। तो उससे क्रिएट हो जाएगा। तो फाइल XYZ में आ, है ना, टेस्ट XY, सर ठीक है। आपने जो फाइल बनाई है ऑटोमेशन ट्यूलिप करके जो है हमारी रिपोजिटरी, उसके अंदर बना रहे हो आप, करेक्ट? नहीं सर, मैं यूज नहीं दे, मैं तो गिट प्रैक्टिस एक नया लोकल फोल्डर बनाया, उसमें सब बता रहा हूँ मैं। लेकिन आपने अभी जो फाइल बनाई है वो तो ऊपर बनाई है ना, ऑटोमेशन ट्यूलिप्स के अंदर एक नई। नहीं नहीं, अलग है। ओह नहीं 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 नहीं, यू आर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा सर 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 यार, सर वो सर सर सर, सही सर कह रहे हो थोड़ा सर, सही पकड़ा भाई ने। आप खाली नीचे करा आप रहे थे सर खाली आप ही जग रहे हैं सर। ये गिट प्रैक्टिस में कराया था आपने नीचे। हाँ, तो गिट स्टेटस मारते हैं, और फाइल XYZ.txt आ गया, गिट ऐड, गिट कमिट -m added file to XYZ, एंड अब चलते हैं लॉग देखते हैं। तो इसमें एक नया कमिट हो गया ना सर, है ना, XYZ, क्योंकि
ये बट लेफ्ट बट वाला सर, XYZ आ गया। मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि मेरे हाँ, को एक्स वाई जी और एबीसी क्यों नहीं दिख रही है लेफ्ट साइड के इसके अंदर आपके गिट प्रैक्टिस के फोल्डर में? ब्रांच, ये कौन सी ब्रांच फाइल यहाँ नहीं पे, दिख रही है? ब्रांच ब्रांच विजिबल नहीं होगी क्या इसके अंदर? इसमें गिट, ब्रांच थोड़ी विजिबल होती है सर, इसमें ब्रांच थोड़ी होती है, ब्रांच तो यहाँ पे कमांड से दिखता है। ये तो फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो करंट जिस ब्रांच में रहेगा ना उसका दिखाएगा यहाँ पे। नहीं समझ में आया? नहीं, फिर अगर मुझे ब्रांच देखनी है गुई के अंदर तो दिखेगी कहीं पे? नहीं दिखेगी? वहां गिटहब पे दिखेगी पुश करने के बाद, यहाँ पे लोकली कमांड से ही दिखेंगे सिर्फ। अच्छा, ऐसा क्योंकि नहीं मेरा यहाँ ये पे। लोकल रिपोजिटरी है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी नहीं नहीं विजुअल। नहीं, यहाँ पे, यहाँ अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ पे दिख जाएगी विजुअल स्टूडियो के हेल्प से। XYZ पे हूँ मैं, XYZ का ये फाइल्स है। यहाँ पे फाइल के बाजू में नहीं लिखा आता ये। अच्छा, नीचे दिख रहा है एक्स वाई जी में नीचे दिख ब्रांच रहा का है जो, XYZ यहाँ पे। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अभी XYZ पे है, हमने ऐड किया, कमिट किया, राइट। चलिए XYZ से एक ये मेन से हमने क्रिएट किया था ना, यहाँ से मेन से, ठीक है। और XYZ पे हमने एडेड फाइल टू एक कमिट ऐड किया है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, गेट चेकआउट, एक बार मेन पे चलते हैं, गेट चेकआउट मेन, और मेन में जाके नीचे भी चेंज हो गया सर, अब समझ में आया ये। नीचे हाँ दिख रहे नीचे हो चेंज हो जाएगा, हाँ हाँ नीचे चेंज हो ब्रांच में मेन जाएगा। आ गया अब। हाँ, और आज गौरव सर ज्वाइन नहीं किए हैं क्या जी? कौन से वाला गौरव? आपके पता नहीं सर। आज नहीं है लग रहा। कमेंट है, सर वो गिट कर रहा है। स्टेटस में देखना, मैं दिखा रहा है क्या, दिखा रहा है। अपडेटेड। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं कलरफुल ये सब, तो ये हमें गुई में भी दिखेगा? बेस्ट रहेगा काम करना है कि यहाँ से CLI से? आप जहां से फ्लेक्सिबल है सर, कमांड लाइन से सही रहता है। ये लोकली डेवलप, इसी को तो बोलते हैं ना लोकल डेवलपमेंट, है ना। जैसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा, वहां से क्लोन कर लिया है, ब्रांच कर आप लोकली डेवलप करके लास्ट में जो टेस्ट उसका ले जाकर पुश कर दीजिए वहां पे, है GitHub ना। नहीं तो वहां पे कीजिएगा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा ना सबको। यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ किसी को इम्पैक्ट करेगा सर, जब और तक मुझे मैं पुश कमांड ना लाइन पे करूँ। ज्यादा ज्यादा वो रहता है आदमी का ना, वेब प्रैक्टिस चाहिए बस, वही है। हाँ वही से ज्यादा अच्छा कमांड लाइन है। सर, डेली के काम तो वही, बिल्कुल। आपको गिट पुल, ब्रांच तो ऑलरेडी क्लोन रहेगा ही आपके पास, गिट पुल लेटेस्ट आ गया, फिर आपने काम किया, गिट पुश किया सर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट किया, अप्रूवर अप्रूव करेंगे, मर्ज होगा, बात खत्म, ठीक है। कन्फ्लिक्ट आया तो रिजॉल्व करने, वो भी बहुत रेयर आता है क्योंकि अलग अलग फाइल पे ही काम करते हैं ना, एक फाइल पे तो नहीं काम कर रहा था। तो डेली का प्रैक्टिस का मत सोचिए कि इतना सारा ये पढ़ने के लिए है, इंटरव्यूज के लिए है ना। इंटरव्यूज में भी सर आप जाइएगा, दो चार क्वेश्चन ही है जो पूछी जाती हैं, इतना कोई थोड़ी आता है, उनको भी आना चाहिए ना सर। वो भी तो नेटवर्क इंजीनियर थे कभी, वो भी जाके इतना डेप्थ में पढ़ना होना चाहिए ना। अगर वो हाँ आपसे पढ़ के सिद्दीकी गया का तो ज्यादा स्टूडेंट होगा, पूछेगा। हाँ मैं यही बात बोलने जा रहा था, अगर मेरा स्टूडेंट होगा तो। लेकिन अपने रिज्यूमे में लिख दीजिएगा, आई हैव लर्न ऑटोमेशन फ्रॉम नेटजी इंडिया सर, एक बार देख लीजिएगा सर, उधर मेरा स्टूडेंट मिलेगा ना सर, तब। अब नहीं बोलूंगा, रिकॉर्ड हो रहा सेशन। तो अच्छा ज्यादा सर एक सर चीज एक और बात बता दो। बताओ। अब सर मान लो मेन ब्रांच बाय मिस्टेक या बाय चांस डिलीट हो जाती है, हम्म, तो उससे एसोसिएटेड जितने भी हमारी ब्रांच रहेंगी सब कुछ डिलीट हो जाएगा। उसको हाँ फिर हो कैसे रिकंसिलिएट? आइडियली, बट वो होता नहीं है, नहीं अलाउ करेगा। अच्छा, तो मतलब प्रोटेक्शन नहीं कर होता है, सकते किसी नहीं भी नहीं, वो ब्रांच प्रोडक्ट्स? प्रोटेक्शन होता है। डिपेंडेंसीज है ना, डिपेंडेंसी जैसा आप कभी देखते हैं, एक चीज डिलीट करने के लिए बोलता है ये भी डिलीट करो तब जाकर डिलीट होगा, है ना, डिपेंडेंसीज होती है ना ऑटोमेटिक, हम्म। उस तरह की चीजें। सर अभी आपने यहाँ पे मर्ज किया था, ठीक है? हाँ एबीसी को आपने मर्ज कर दिया था मेन के अंदर थोड़ी देर पहले हमने, हाँ करेक्ट? हाँ। अब जब आपने यहाँ पे कर दिया है, अब जब हम उस पे मेन उस गिट पे जाके करेंगे तब यहाँ से और वहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा? वहाँ पे आप बता रहे हो कि वहाँ पे हमारे पास रिव्यूअर आ जाएंगे और ये सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, करेक्ट? हम्म। तो उसके लिए यहाँ से कैसे करते हैं मतलब?
थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि अभी हमने यहाँ तो मर्ज कर दिया फटाफट, क्योंकि हमारी नहीं अपनी सब लोकल यहाँ ब्रांड्स पे थी। नहीं मर्ज, हाँ सब चीज किए, अलग अलग कमिट क्रिएट हो रहा, ये पुश नहीं किया वहां पे। हाँ, जैसे जब पुश करूंगा सब वहां आ जाएगा। लेकिन अभी तो आपने मर्ज किया है, अगर यहाँ पे लोकल उसके हाँ अंदर ये अपनी सब कमिट रिपोजिटरी में। जाएगा सर, ये सारे कमिट जाएगा आपको पुश कीजिएगा तो। लेकिन वहां पे आप बोल रहे थे कि जब हम मर्ज करते हैं तो हमारा रिव्यूअर भी आएगा, वो भी चेक करेगा मर्ज करने से हाँ पहले। तो देखेगा ना कि इतने कमिट्स किए हैं आप, और ये चेंजेस किए हैं, इस कमिट्स में ये चेंज है, लास्ट वाले देखेगा, वहां से नहीं तो उससे पहले जाएगा अगर देखना है तो। वो यहाँ पे भी दिख सकता है क्या कि वहां पे गोई में जाके देखना पड़ेगा? यूजुअली रिव्यू गोई में ही लोग करते हैं, जो रिव्यू होता है वो गोई में होता है सर, वहीं पे। ओके। ये सर अभी हम इसको करेंगे ना अभी वहां पे मर्ज, कहाँ पे? पुश ऐसा नहीं करेंगे कि जब। यहाँ नहीं कर सकते सर, पुल करके देख रहे हैं ना, पूरा हिस्ट्री का हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दे ही सकते हैं ना आप यहाँ पे, लेकिन सर गोई में इजी पड़ता है। सर गोई में मान लो रिव्यू करेंगे वो तो, लेकिन वो तो हमें तो पुश करना पड़ेगा ना यहाँ से पहले गोई में। हाँ तो पुश तो हम तो अब वो सीख रहे हैं पुश सर, करने, अभी अब सीख करके। कमिट, हाँ कमिट ये हमने इधर कर दिए हैं तो उधर सब हम इससे लोकल पुश कमिट्स है करेंगे। सर, लेकिन अच्छा, हाँ लेकिन ये सारे लोकल वर्जन बने हुए हैं, जब पुश करेंगे तो सारा वर्जन वहां जाएगा सर। नहीं वहां पे पुश करने के बाद फिर ऐड करने के बाद फिर से हमें कमिट करना पड़ेगा उधर। हाँ फिर से करना पड़ेगा सर, एक बार पुश कर दिया फिर कुछ चेंज करा तो फिर पुश कीजिएगा, फिर कुछ चेंज करेंगे फिर पुश कीजिएगा। नहीं सर नहीं नहीं, सिंपल। जैसे हमने इधर लोकली हमने कमिट कर दिए, आप बोल रहे हो कि फिर उधर रिव्यू के लिए कोई में वो रिव्यू करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जब तक पुश नहीं करेंगे कहाँ दिखेगा उनको, कुछ भी नहीं दिखेगा। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ मान लो हमने पुश कर दिया है हाँ। इसको, हमने सारे इधर से लोकल कमिट किए हुए हैं, हमने हम्म इसको पुश करा उसमें मेन में, हम्म है ना, गोई में पुश करा इसको। हम्म। तो ये उसके बाद रिव्यू होने के बाद फिर दोबारा से हमें कमिट करना पड़ेगा मेन में ऐड करने के लिए, प्रोड में ऐड करने के लिए। नहीं वहीं पे आता ना, जब रिव्यू कब होता है, जब आप मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं तो। अच्छा, तो उस प्रोसेस में पहले जैसे ही वो ही रिव्यू होगा, रिव्यू करने के रिव्यू बाद होगा, ही फाइनल पुश होगा। रिव्यू कंप्लीट हो गया, हाँ, सीधा अप्रूव करते ही मर्ज हो जाएगा। ओके, ठीक हाँ, है। तो हम जैसे इधर से इनिशिएट करेंगे तो वो रिव्यू करने के बाद ही उधर से ये फाइनली पुश एग्जैक्टली। वो रिव्यू करने के बाद ही होगा। या अगर आप सर जिसमें मर्ज करना चाह रहे हैं, जब तक रिव्यू होके अप्रूव नहीं होगा मर्ज नहीं होगा। अभी सर गिट पुश तो उस पे जब करेंगे तो हमें वो बताना भी पड़ेगा ना, रिपोजिटरी भी तो वहां नहीं बनी होगी। बिल्कुल सर, लोकली अभी हमने हम बनाया है ना। आज हमने सीएलए यहाँ से स्टार्ट किया ना, जी जी। अभी यहाँ पे मुझे मर्ज बताया, आपको रीबेस बताना है, रिवॉल्ट बताना है, स्क्वैशिंग बतानी है, सब यहाँ हाँ लोकली बतानी है। ये करा और लोकल हो आगे रहा है ले राइट ला जाएंगे, सर। लास्ट में आपको पुश करके वहां पे दिखाएंगे। मान लीजिए इतना कमिट हो गया, क्या आप चाहेंगे कि हर कमिट का ये जो मैसेज है वहां पे दिखे आपको? कैसे? क्योंकि छोटे छोटे कमिट्स है ना। जब आप पुश करें तो आपको ये पसंद तो यही करेंगे कि सबके बदले एक है ना एग्रीगेट मैसेज दे दो, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे लोग पुश करेंगे ना सर, जो जो काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा अगर आप करेंगे तो कमिट हिस्ट्री बहुत लंबी होगी, तो इसको इसको कैसा आप इतना कमिट को मिला के एक मैसेज कैसा बनाइएगा, सब पढ़ना है सर, अभी बताऊंगा इजीली, है ना। हाँ इसीलिए अभी जो भी आप कर रहे हैं वो लोकली केवल हो रहा है, वो वहां पे बिल्कुल लोकली रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, हो लोकली हम पढ़ लेंगे आपको, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है सर। सर इसमें 3 वर्जन बने हैं क्या फाइल के, जो .txt 2, .txt और हाँ जितना .txt1? ये स्टार दिख रहा है उतने वर्षन बना है। और जो आई सबसे नीचे होगा वो सबसे पहले बना है, राइट? उसके हाँ बाद सबसे नीचे सबसे पहले, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं क्या सर इसमें टोटल? 9? नहीं तो ये वाला कमिट इसमें है, एबीसी का है, ये वाला कमिट है यहाँ पे किसका, मेन का। सर हमें किसी पर्टिकुलर वर्जन को ओपन करना है। बिल्कुल करेंगे सर, सब आऊंगा मैं, है ना। सर ये थोड़ा सा एक बार रिवॉर्ड एक्सप्लेन करो ये चीज थोड़ा सा। आप एक एक्चुअली गिट चेकआउट और कमिट आईडी दिएगा, उसी को चले जाइएगा आप, गिट चेकआउट करके ना एक कॉपी पेस्ट मारिएगा तो उसको चले जाइएगा। मैं आऊंगा, सब तो ना सीक्वेंस बताने दीजिए, नहीं तो बहुत सारे हौच पच हो जाएगा। ठीक है सर। सर मैं ये तो कह रहा था कि ये मतलब जो लिंक है गिट के ये रिकॉर्डिंग सेशन का, सर ये एक्सेस ही नहीं है। मैं तो आप पिंग करना था एक्चुअली, थोड़ा सा ये गिट वाला जो लास्ट सेशन है उसमें दिक्कत आ रही है, सेव ही नहीं हो रहा ईमेल आईडी। तो थोड़े लोगों का सेव हुआ है जिनका उनको एक्सेस है, आप मुझे चैट पे डाल दीजिए, मैं करता हूँ आपका ट्राई। ठीक मेल है, मेल आईडी डाल दूं सर? ये वाला आज मैं रिस्क नहीं लूंगा, ये वाला पब्लिक कर दूंगा, ये वाला जो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सर ये देखिए हमने कहाँ पे आ गए,
मेन पे है यहाँ पे, मेन पे ये है एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई जी। अब मैं जा रहा हूँ एक्स वाई जी से एक और ब्रांच बनाने, ब्रांच बनाऊंगा एक्स वाई जी से नया ब्रांच। तो गेट चेकआउट एक्स वाई जी एंड गेट ब्रांच सी एक्स वाई जी न्यू, है ना, या लिखता हूँ फ्रॉम एक्स वाई जी, है ना सर, फ्रॉम एक्स वाई जी नया ब्रांच का नाम है, ठीक है। अब गिट ये देखिए आप, ब्रांच। हमने एक हेड हमारा एक्स वाई जी पे है क्योंकि चेकआउट नहीं किया हूँ, लेकिन एक और ब्रांच क्रिएटेड है यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं गेट चेकआउट फ्रॉम, है ना, एक्स वाई जी, ठीक है। अब लॉक मारते हैं, अब देखें हमने हेड कहाँ आ गया, एक्स वाई जी पे आ गया, है ना सर। तो हमने जो ब्रांच बना था मर्ज करने के बाद इसमें कमिट ऐड करते हैं पहले, है ना। तो गेट स्टेटस, यहाँ पे हम यहाँ पे एक नया फाइल ऐड कर देते हैं, फाइल फॉर एक्स वाई, फाइल फॉर, क्या नाम दिए थे, फ्रॉम एक्स वाई जी। हाँ, फ्रॉम एक्स वाई जी डॉट टी एक्स टी, राइट। गेट स्टेटस मारेंगे, गेट कमिट मारेंगे, एडेड फाइल, फाइल फॉर एक्स वाई, अरे फ्रॉम एक्स वाई जी ना, तो एनीवे, ऑलराइट। तो हमने एक्स वाई जी इसमें ना ऐड करना पड़ेगा, फिर एक्स वाई जी पे तो ग्राफ बनाने के लिए ना, मैं चाह रहा हूँ बनाना इसको अच्छा दिखाना आपको। तो कमिट जितना क्रिएट करेंगे उतना ग्राफ क्लियर होता जाता है। तो मैं हूँ गिट स्टेटस, किस पे हूँ, ओह इसको सर ऐड नहीं जेड आ किया रहा ना, है ना सर, अभी ऐड नहीं हुआ ना। हाँ ऐड नहीं ऐड हुआ नहीं। सर, गेट कोई बोला, ठीक नहीं, चेंजेस हुआ, अपडेटेड तो अगर हम सर फ्रॉम, ऐड डॉट लिख देते हैं तो वो जो अभी करंट में रेड है वही ऐड हो जाता है ऐसा, सारे हो जाएंगे चाहे जितने भी हो। जितने भी हैं। हाँ सम एक्स वाई जी पे हम आ गए, राइट। तो और ये क्रिएट कहाँ से हुआ, एक्स वाई जी से, ये दूसरा ब्रांच फ्रॉम एक्स वाई जी, राइट। अब हम एक्स वाई जी पे कुछ ऐड करेंगे ना, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना, हम्म, ठीक है। बड़ा तमाशा है सर। हम कहाँ चले सर, गेट एक्स वाई जी पे। चेकआउट, सर आप लोग भी खेलिएगा ना ये तमाशा, थोड़ी सी कमांड है। मैं असल ये पूरा लॉग मैं आपको देखता हूँ, कॉपी होके अगर फाइल पे आ गया तो मैं भेजूंगा आपको, ठीक है। आ, मुश्किल ही लग रहा है लेकिन, गिट चेकआउट एक्स वाई जी, ठीक है, गिट चेकआउट एक्स वाई जी, और ये वाला सर है टू गिट ऐड गेट कमिट अपडेटेड फाइल टू, है ना। अब चलते हैं गिट लॉग फिर से देखते हैं, एक्सेलेंट। अब ये दोनों अलग अलग हो गए सर, एक्स वाई जी और, है ना ये। अब मैं जा रहा हूँ मेन पे, हम्म, गेट, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ देख रहे हैं आप लोग, सर मुझे अभी तक ये चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई कि इसमें टोटल कितनी फाइल क्रिएट की हुई है, कैसे पता चलेगा यहाँ। कितनी फाइल, देखो लेफ्ट साइड में 4 फाइल दिख रही है गिट प्रैक्टिस में, जो आपने लेफ्ट साइड में जो हम देख रहे हैं, बट यहाँ कितनी फाइल क्रिएट हो गई है मेरी। कहाँ पे, ये तो लॉग मैसेज दिखा रहा है जब आपने अपडेट किया, कमिट मैसेज है सर, ये फाइल थोड़ी बताएगा कितने फाइल ऐड किया है, हाँ मतलब कितने मेरे वर्जन बने जो आप बोल रहे थे ना कितने कि मैं वर्षन इसे में स्टार, किस ब्रांच में कितने बने वो स्टार काउंट कर लीजिए। तो टोटल कितने हैं सर, अगर मैं देखूं इसमें टोटल ओवरऑल। देखने की क्या जरूरत है हमें, सर टोटल मैं हमें देखना अभी चाहता हूँ हर कि ब्रांच के अपने अपने है ना,
तो टोटल के देखना है तो जितने सारे काउंट कर लीजिए, सारे कमिट्स हैं अलग अलग। सबको जाके एक बनाने के लिए बाद में बताऊंगा आपको, स्क्रैचिंग बताऊंगा, वहां पे मैसेजेस सबको एक बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा। वहां पे जाके लोकल तो आपको 50 हो सकता है कमिट, लेकिन ऊपर जाके वहां पे जब पुश करेंगे उस टाइम 50 के बदले 2 दे दें, 1 दे दें, 4 दे दें, वो आपके हैंड में है ना, ताकि सबको ना दिखे कि मैंने क्या क्या करना में किया है ना सर, वो भी तो है। हाँ, अगर सारे कमिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली सबको पुश करना, तो डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं आप, है ना। तो गिट चेकआउट मेन मैंने किया यहाँ पे, और मेन में जाके मैं एक और ऐड कर दो डेटा यहाँ पे 5, और ऐड करके कमिट कर देते हैं अपडेटेड मेन 5। ये नंबर दे रहा हूँ इसलिए कि बाद में जाके हम कुछ इसी पे सीखना है। ठीक है सर, आप देखिएगा सर ये गिट लॉग अब बढ़िया बन रहा सर। क्या सर, ये ये हमारा ये वाला जो ब्रांच है, ये जो एक्स वाई जे, उससे एक ब्रांच क्रिएट किए थे फ्रॉम एक्स वाई जी, है ना। हम्म, अब ये एक्स वाई जी को इसमें मर्ज करूंगा तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे, फिर इसको मर्ज करूंगा तो इसमें एक हो जाएंगे। इतना कर लें, फिर आपको कीजिएगा आपने। क्या सर, हाँ सबको जी हाँ मर्ज जी, कर दें? कर दो सर। तो पहले एक्स वाई जी में जाएंगे और मर्ज करेंगे फ्रॉम एक्स वाई जी को। तो गिट चेकआउट एक्स वाई जी और गेट मर्ज फ्रॉम हाइफन एक्स वाई जी। ठीक है, हाइफन मैसेज दे देते हैं, मर्ज फ्रॉम एक्स वाई जी टू एक्स वाई जी ना सर। ठीक है, ये मर्ज हो जाना चाहिए। अब नया कमिट भी क्रिएट होगा, ये अभी देखिए सर। हम्म, अब ये एक्स वाई जी है वाला, ये वाला एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी खत्म हो गया, जाके देखिए यहाँ पे मर्ज हो रहा हम्म है ना। और मैं अब एक्स वाई जी को जा रहा हूँ मर्ज करने फिर से मेन में, तो क्या करूंगा सर मैं? गिट चेकआउट मेन। गिट चेकआउट मेन, और फिर गिट चेकआउट मेन में जाके गिट मर्ज। मर्ज किसको, एक्स वाई जी को एक्स ना, वाई जी। और मैसेज दे देंगे मर्जिंग एक्स वाई जी टू मेन, है ना। ठीक है सर, और फिर ये देखिए सर, हो गया सर सब। ये इससे एक्स वाई जी क्रिएट हुआ था, एक्स वाई जी आगे क्रिएट मर्ज हो गया एक्स वाई जी में, फ्रॉम एक्स वाई जी क्रिएट होता ना सर यहाँ से, है ना। फिर जाके मर्ज हो गया एक्स वाई जी में, एक्स वाई जी जाके मर्ज हो गया मेन में। It's- तो आज सर इतना रहने देंगे, इसके बाद इसके टॉप पे मेरा टॉपिक है ना, ये बेस हो जाएगा इसके। यानी सर सारे ब्रांच अब हट गए, अब केवल एक ही ब्रांच है एक ही मेन, राइट? ब्रांचेस नहीं, वो ब्रांच है, डिलीट नहीं हुए हैं, हाँ। लेकिन सब सब मर्ज हो मर्ज गया हो फिर, चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, सबका इनपुट मेन में आ गया है जो भी मेन में उसका आ है। गया। यस यस। अब तो फिर हम लोग सारे ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं, राइट? हाँ नहीं हाँ, किया। डिलीट कर सकते हैं आप। तो ये मेन है, यहाँ पे मेन में देखेंगे सारे फाइल एक्स वाई जी मेन एबीसी फ्रॉम एक्स वाई जी सब आ गए सर फाइल। ये तो सर यहाँ पे पहले ही थे, ये तो कंफ्यूजन है। यहाँ तो पहले थे, वो पता नहीं चलता है किससे कहाँ। यही तो अरे सर कंफ्यूजन यहाँ हो। पे मेन में है, मेन में हाँ यहाँ पे। मेन में है अब। अब आप मेन में ठीक है। सारे फाइलें आ गई ना सर। हम्म सारे फाइल एक्स वाई जी किस में क्रिएट किए थे हमने फाइल? उस ब्रांच में क्रिएट किया था ना, एक्स वाई जी में, फ्रॉम एक्स वाई जी में। हम्म। एबीसी ये वाला फाइल एबीसी ब्रांच में क्रिएट किया था, बस सर यहाँ पे एक मेन एक में नहीं एक था एक वो। एक एक काम कर दो, बस अभी सबको क्लैरिटी आ जाएगी। एक नई ब्रांच बना के अभी टेस्ट के नाम पे बना दो, और उसके अंदर एक एक फाइल उसी के अंदर ऐड कर दो। फिर ठीक यहाँ पे हम जब उस पर चेक करेंगे ना, सबको पता लग जाएगा। ठीक है सर, तो ब्रांच मेन से क्रिएट करूँ हाँ। तो गिट ब्रांच माइनस कौन सा नाम दूँ? रवि, रवि ब्रांच है ऑलरेडी नहीं। आरएस कर दो सर, रवि शर्मा आ जाए। आर आरएस एस, टेस्ट, आरएस, हाँ आरएस हो गई ना। आर एस गेट चेकआउट आर एस, राइट। तो अब यहाँ ये पे क्रिएट क्योंकि, करते हैं। हाँ अब देखें हम आर एस में यहाँ पे अब एक नया ब्रांच की नया फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल फॉर
RS। RS। डॉट txt, राइट? ठीक है सर। टेस्टिंग, ठीक है। git add, git commit, है ना? हम्म। added file to RS। rs, ठीक है। RS। और अब बस सर एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं, जब आप RS पे क्लिक कर रहे हो तो नीचे मुझे RS दिख रहा है, ठीक है। देखिए और rs किसी यहाँ और, दिख रहा, आप हाँ चेकआउट मेन मैं को कर रहा हूँ तो नहीं दिखेगा आपको। कहाँ है? अरे चले गया ना? हाँ, यही तो था। हाँ। और फिर अब ओहो, मैं गिटहब चेक में जाकर मैं बोल रहा हूँ गिट मर्ज, कौन सा? rs ना? हम्म। rs ही ब्रांच था ना? हाँ। हाँ यस जी, हाँ सर। गिट जी। मर्ज rs, अब RS मैसेज माइनस M। एडिंग, मर्जिंग, rs RS2 टू में, में। राइट? अब आ अब देखिए गया, अब मेन में, समझ में आ गया सर, ये अब पहले थोड़ा सा ना, हाँ, एटलीस्ट बहुत मुझे तो बढ़िया। अब समझ में आया, बाकी पता नहीं भाई लोगों को जिनको। बिल्कुल सर, बताइए। सर इसके ग्राफ दिखाना चाहिए मेरे को फिर से, ब्लॉक्स वाली। ये बढ़िया, आपने को समझ रहे को तो सबसे मेरा फेवरेट क्लास, फेवरेट कमांड यही रह गया सर, यही ग्राफ वाला, धनुष बन गया इसका। है ना सर? आगे सर देखिए, ये अलग क्रिएट हुआ था, इधर था। मर्ज लेकिन सर कहाँ है RS इसमें? कहाँ है RS। सर? हाँ, ऊपर आ मर्ज गई हुआ है, नहीं है? ऊपर आ गया है नीले एडेड फाइल टू rs, मर्जिंग xyz टू मेन, और बट एक एक्स वाई सेकंड में जी सर, हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ, क्यू दबाना है सर, है ना? अभी हम कहाँ पे हैं? गेट स्टेटस, एक्चुअली वो सेम है ना, इसीलिए वैसा नहीं दिखा रहा। मेन ब्रांच पे है ना, तो अब ये एक्चुअली दोनों का जो कमिट है यहाँ पे सेम है। मेन और आरएस दोनों बराबर हो गया सर, इसलिए वैसा नहीं दिखा रहा अलग से। आप देखिए ना, आरएस और मेन, अगर मैं किसी में एक में ऐड करूँ ना तो वो अलग भागेगा, तब जाके ये अलग दिखेगा आपको। मतलब सर अगर आरएस का अलग से नहीं दिख रहा है क्योंकि आरएस पे हमने कोई कमिट नहीं करा था। आरएस और मेन दोनों सेम ही कंटेंट है, पैरेलली दिखाते हैं। अगर मैं आरएस में कुछ नया ऐड करूंगा ना तो यहाँ पे ग्राफ आ जाना चाहिए। करते हैं, हाँ करें? बट अब RS तो है ही नहीं, RS तो मर्ज कर दी हमने। कोई नहीं, बस ब्रांच है डालेंगे। सर। मर्ज तो कर दिया लेकिन ब्रांच है ना। हाँ ओके, ब्रांच हाँ यस। करेक्ट। चेकआउट, राइट। और आरएस में जाके, यहाँ आरएस आ गया, इसमें फाइल आरएस का किधर है? इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। सर एक बात बताओ, अभी लेफ्ट में हम सब देख रहे हैं जो वो सारी फाइल अभी भी दिख रही है, तो तो आरएस में सेम है ना सर, सारी फाइलें हैं। क्योंकि अब मर्ज कर चुके हैं इसलिए हमारे को सारी दिख रही है, करेक्ट ऐसा है? नहीं, मैंने मेन से आरएस बनाया था, तो मेन में जो था सब का सब आरएस में आ गया था ना। हाँ 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 लेकिन हाँ। आरएस वाला सबका सब मेन में नहीं था, मर्ज करने के बाद आया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक। गेट चेकआउट आरएस में हम आ गए, और यहाँ पे चेंजेस किए, गिट ऐड स्टेटस मारते हाँ। हैं, गिट ऐड मार देते हैं, गिट कमिट मारते रहते हैं। अरे वो दो तीन कमिट मारना पड़ता दोनों पे ताकि हाँ ग्राफ हाँ बने, है ना? और कुछ नहीं है। ऐड सर अगली अपडेटेड, क्लास शुरू होने का टाइम हो गया हमारा। अपडेटेड आरएस फाइल, है ना? अब चलते हैं एक बार लॉग देखते हैं। ये देखिए, मेन से आरएस, और मेन में ऐड करूंगा कुछ और तो फिर ये बाइफरकेट करके दिखाएगा सर। गेट चेकआउट, चेकआउट। लेकिन सर अब हमें मर्ज करने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमने RS को पहले ही मर्ज अरे कर दिया। नहीं नहीं, अलग अलग हो गया, फिर से दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। मेन में आया, मेन में आ गया, मेन वाला में एक ऐड करता हूँ नई चीज। किसी में भी ऐड कर सकता, लेकिन मेन में कर रहा नहीं सर, अभी मेन में आरएस में वो चाहिए तो सर, आरएस हूँ। टेक्स्ट एक फाइल सेकंड में रुकिए आप लोग, गेट वो अपडेट नहीं होना चाहिए ऐड ना, जो आपने कमेंट ऐड किया है। कमेंट हाइफन अपडेटेड मेन फाइल। पाइथन से ज्यादा मुश्किल तो गिट लग रहा है। नहीं, प्रैक्टिस की चीज है, दो चार ही कमांड है, कहाँ सर कमांड थोड़ी ज्यादा है। कमांड लाइन से थोड़ा सा ये हाल ही मैं दिक्कत है। बता रहा हूँ, देखिए होता ना, क्या बोलते हैं उसको, डोंट ट्राई टू लर्न डिफरेंट थिंग, राइट?
ट्राई टू लर्न डिफरेंशिएटली, सुने आप लोग प्रो ये प्रो ट्राई टू ठीक लर्न है। डिफरेंशिएटली, एक चीज को डिगअप कर दो। कमांड सर यहाँ हिस्ट्री में देखिए मैंने क्या कमांड चला, गिट ऐड जानते हैं, गिट चेकआउट जानते हैं, ये कमांड ऐड किया हूँ सर बस आज। नहीं अभी सर आप वो फाइल लेकिन जो हम आज तक पढ़ते आ रहे थे उसको आज मैं दिखा रहा हूँ ग्राफिकली, है कि नहीं? और मर्ज बताया बस, अभी तो सर क्योंकि रीबेस रिवॉर्ड सब। अभी हमने मर्ज नहीं किया है। ये देखिए अब आप सर अलग हो गया, आरएस आ गया, अलग दिख रहा अब। अब इसको दोबारा मर्ज करना पड़ेगा हमें? दोबारा मर्ज करना पड़ेगा नहीं जितना बार सर अभी अभी हमने मर्ज नहीं किया तो ये फाइल तो अपडेट नहीं हुई होगी rs.txt, नहीं क्योंकि अभी नहीं। हम मेन में है। तो हाँ सर जी, इसमें देखिए तो वो अपडेट हुआ है कि नहीं, दिखा रहा है अपडेट 2 किसमें? rs फाइल में, rs.txt में। नो नो लेफ्ट साइड में हमने, या तो ऊपर अभी में मैं rs। मेन पे हूँ ना, हाँ आरएस तो का नहीं इसमें देखना दिखेगा। है वो नहीं फाइल नहीं तो होगा, नहीं होगा, नहीं है ना, टेस्टिंग 2 नहीं है। मर्ज करना पड़ेगा तब होगा। ओके, जब मर्ज करेंगे तो टेस्टिंग 2 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हाँ जी, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ है सर, मुझे तो एटलीस्ट मैं हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। फिर इसके टॉप पे जाना है ना, तो फिर रिवाइज होता है सर। सर वही तो सर, इसीलिए तो सिद्दीकी के पास आप आए हैं। इसको ना सर एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना अपने से बना देखिए के प्रैक्टिस करके रिपोजिटरी। आइएगा, लेकिन एक चीज बताइए, नेक्स्ट इसके ऊपर जो बताना है ये यूज होगा तो फिर से मुझे तो फिर चलाना पड़ेगा ना आपको दिखाने के लिए। लेकिन नेक्स्ट सेशन में आइएगा तो फैमिलियरिटी चलो 20% तो रहेगी ना। हाँ इसमें वीडियो कोशिश करिएगा जल्दी शेयर कर। अभी कर देता हूँ इसको, कंप्रेस होने के बाद इसको पब्लिक डालूंगा और रिस्क नहीं लूंगा, उस परमिशन में थोड़ा इश्यू आ रहा। ठीक है, ऑलराइट सर। तो सर बाकी के 2 वीडियो भी वो पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेस नहीं आ रहा। सारे नहीं मतलब कर 3 सकते ना वीडियो सर ये शेयर पब्लिक, करेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें ऐड करने का। ये एक बीच में CLI भेज दे, इसको कर सकता हूँ, है ना? हम्म ठीक है सर। तो इसके बाद सर कोई क्लास हमारी भी है क्या?